Assalamu alaikum to all the participants and the viewers who are watching us live on our Facebook page, Rehan AI Teacher Institute Teacher Training Bootcamp for 2 months. Myself, Mariam Zulfikar, training Mari, working as Vice Principal at Rehan School Online Academy and Facilitator at Rehan AI Teachers Institute Teacher Training Bootcamp for 2 months. Tonight is 1st of August 2025. The day is Friday and the time is 22 minutes past 9 p.m. UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. As our new month has been started now, and start the new month with the positive affirmations and very positive energy, so that the rest of the whole month will complete our goals that we're going to set for today. Thank you so very much, everyone, for joining, and wish you very beautiful and happy month to all of you. So let's move toward the meditation, and then we'll proceed towards the class. I request all the participants, please prepare do the meditation in a proper way so that you can get the benefits. जी नसीमुल्लाह भाई प्लीज प्ले द मेडिटेशन वीडियो. मिस राहत आप दो लैपटॉप से हैं या दो डिवाइसेस हैं? अच्छा मैं करवाती हूँ ठीक इसको क्या है. ओके. Spine tall and straight, shoulders rolling back slightly to open up your heart, palms resting in your lap facing open. And when you're ready, lovingly close your eyes. Allow yourself to focus on your breath, feeling a sense of expansion on every inhale and a sense of release on every exhale. Recognizing the gift that is your breath, even if only for this moment, feeling deeply grateful for the air you are breathing. You feel yourself as present in your body, present in this moment. And you start to think about all the ways your life is now better than it was at some other point. Even if only one or two ways come to mind, focus on them intently. What are at least one or two improvements that have happened across the course of your life? Spend a moment simply tuning in to how these improvements feel in your body, your heart, and your mind. And as you start to equate your life with improvement, as you start to feel what it feels like within you to experience improvement, you start to feel a sense of positivity and optimism building within you, feeling that it's possible for positive growth to continue. You know what it feels like, and you welcome in aligning with it even more now. You affirm to yourself, I'm ready for good things. I welcome in goodness in my life. I welcome in positive, happy, healthy experiences. I allow myself to align with joy. I allow myself to align with positivity.
And with that, you feel as though a beam of light is lowering down over you, aligning your body with positivity. Use your imagination to tune in to the beautiful energy here. Affirming to yourself, I am positivity. Take a nice deep breath in, stomach and ribcage fully expanding, letting the feeling of positivity build. And when you're ready, exhale with a sigh. Begin to roll your shoulders, wiggle your fingers and toes, feeling this positive energy flowing all throughout you, and taking the sense of positivity with you as you open your eyes back to the incredible world around you. Assalamualaikum participants, thank you so very much for practicing the meditation video. And Assalamualaikum मोहम्मद रिहान अफजल साहब, माइक खोलिएगा अपना। रेहान साहब अपना माइक खोलिएगा। रेहान साहब अपना माइक खोलते हैं प्लीज। रेहान भाई, आप मुझे लग रहा है गलत लिंक पे हैं। अपनी क्लास जो है आप उसका लिंक चेक कीजिएगा ग्रुप के अंदर, फिर आपको उसका जो लिंक मिले प्लीज उस पर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ओके पार्टिसिपेंट्स, लेट्स गो फॉर द टास्क। अच्छा, पहले मुझे ये बता दें कि कल के टास्क में किसी को कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। हाँ कुछ मैम। ऑब्जर्वेशन मेरी है। जी जी मैम। जी जावेद भाई। हाँ मैम, जो वीडियो बनाने के लिए बनाया गया था, बताया गया था ना, वो वीडियो तो मैम बन गई थी, लेकिन वो वहां से जो है ना अपलोड नहीं हो रही मुझे, मतलब कॉपी जो उसका लिंक है ना वो कॉपी नहीं हो रहा है। और एक दिक्कत तो आ रही है मैम, जैसे सॉन्ग था उसमें जो रात वीडियो में जो वीडियो भैया ने बताई थी, उसमें जो सॉन्ग चल रहा है, लेकिन हमारी वाली जो वीडियो है उसमें सॉन्ग नहीं हो रहा है। और सॉन्ग जैसे वहां से ले रहे हैं तो फिर वो पेट बढ़ जाने का। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ अभी आपको उसके बारे में। मैंने कुछ आप सबकी प्रोफाइल्स विजिट की और उसमें कुछ चीजें मुझे नजर आई, जिनको कुछ तो मैंने वहीं पे गाइड कर दिया, कुछ को गाइड करने की मजीद जरूरत है। आप सबको प्लीज मैंने रिक्वेस्ट की थी, रेहान स्कूल टास्क हेल्पर जो है जीपीटी को यूज करना शुरू कर दे, नहीं तो डायरेक्टली चैट जीपीटी को भी यूज कर लेंगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। जिनमें सबसे पहले ये है कि आप सब जो है जितने भी स्टोरी पोस्ट का टास्क कर रहे हैं, स्टोरी पोस्ट का टास्क भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट का टास्क कर रहे हैं और अपना फेसलेस वीडियो का टास्क कर रहे हैं, तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना हर चीज की बहुत ज्यादा जरूरी है। और डिस्क्रिप्शन आपको नहीं समझ में आ रही कि आपने कैसे लिखनी है, तो प्रिटी ओके, आप चैट जीपीटी पे जाइए, उसको प्रॉम्प्ट दे दे कि ये टाइटल है मेरा, ठीक है, फेसलेस वीडियो का। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे 3 to 5 सेंटेंस में एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख दो। वो आपको बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन भी दे देगा और बहुत अच्छे तरीके से हैशटैग्स भी दे देगा। उनको कॉपी कीजिए और अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लें, ठीक है। सेम पैटर्न में आपने जो सोशल मीडिया डिजाइन बनाया होता है उसको चैट जीपीटी में ऐड कीजिए और चैट जीपीटी को नीचे प्रॉम्प्ट दे दें कि मुझे सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए डिस्क्रिप्शन दे दो, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी डिस्क्रिप्शन अलाइन करके आपको दे दे, ठीक है। तो प्लीज, अब हमें 1 महीना हो गया है इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करते हुए, अब आपकी चीजों में थोड़ी सी रिफाइनमेंट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ग्रेजुअली एंड स्लोली क्राइटेरिया बहुत सख्त होता जाएगा और कमेंट्स में भी बहुत ज्यादा फिर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा, इसलिए अपनी चीजों को अलाइन करना शुरू कर दीजिए और प्रॉपरली उनको कंप्लीट कीजिए। सेम मैनर में आप में से बहुत पार्टिसिपेंट्स माशाल्लाह से इंटरव्यूज कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। और जिनके इंटरव्यूज नहीं हो रहे वो प्लीज अपने इंटरव्यूज लाइन अप करके इंटरव्यूज करना शुरू कीजिए। मैंने 30 कॉन्टेक्ट्स आपके सबके साथ शेयर किए थे, उन कॉन्टेक्ट्स को कांटेक्ट करके आप इंटरव्यू कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरव्यू कर सकते हैं। अभी भी कॉन्टेक्ट्स की कमी है, डेफिशिएंसी आ रही है, तो प्लीज मुझे बताइए ताकि मैं और कॉन्टेक्ट शेयर कर दूं। आप अपने इंटरव्यूज को टाइमली मैनर में कंप्लीट कर लें। इंटरव्यूज मैम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी डिस्क्रिप्शन अलाइन नहीं है। आप एक डिस्क्रिप्शन का सैंपल मैंने आप सबके साथ शेयर किया था ग्रुप के अंदर, उस डिस्क्रिप्शन को एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए
और उसको सही से समझिए। आपने अपने भी तमाम सोशल लिंक्स इसमें ऐड करने हैं डिस्क्रिप्शन में, और अपने गेस्ट के भी तमाम सोशल लिंक्स ऐड करने हैं। तो मेक श्योर कीजिए आप जिसको भी गेस्ट बना रहे हैं उसको पहले ये रिक्वेस्ट कर लें, अपना एक जो नोट लिख के भेजें, और आपका टाइम डिसाइड हो जाता है। डिसाइड होने के फौरन बाद एक मैसेज आप ये भेजें, काइंडली मुझे अपने सोशल मीडिया लिंक्स फॉरवर्ड कर दें, ताकि वो आपके साथ अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल है वो आपके साथ शेयर कर दें, वेदर इज द इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन। ये चारों को तो हमें लाजमी चाहिए, ठीक है। और हर बच्चे के बने हुए हैं, हर सीनियर पार्टिसिपेंट के बने हुए हैं, तो प्लीज ये चारों लिंक्स उनसे लाजमी लीजिए और अपने हर इंटरव्यू के गेस्ट के अकॉर्डिंग उनको पेश कर दें। आप एक बार एक डिस्क्रिप्शन अपने लिए सेट करेंगे, उसी को कॉपी पेस्ट करके हर बार चेंज करेंगे। चेंज सिर्फ गेस्ट ने होना है, आपने नहीं होना। आपने कंसिस्टेंट रहना है। तो जो एक डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी मेहनत एक दिन हम कर लेंगे, उसके बाद वो आसान हो जाएगी। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन अलाइन नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज अपनी डिस्क्रिप्शन अलाइन रखिए, क्योंकि सरेहान बहुत पर्टिकुलर है इन डिस्क्रिप्शन के मामले में और आपके कंटेंट के मामले में। तो जितना अच्छा और रिफाइंड कंटेंट हम पब्लिश करेंगे, उतनी अच्छी और ज्यादा अच्छे तरीके से हम अपनी चीजों को प्रेजेंट कर पाएंगे। जी मिस लैला, क्या सवाल है आपका? मैम मुझे थोड़ा सा ये था कि एक दफा मैंने लिखा, ऑब्वियसली क्योंकि मेरा होता है या तो मैं आपकी प्रोफाइल खोल के देखती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी गलती निकालने के लिए, या मैम मारिया की, आप दोनों की ही ज्यादा देखती हूँ। तो मैम असल में ना मतलब डिस्क्रिप्शन के लिए या किसी प्रोफाइल ऐसी पे चीज। बिल्कुल नहीं देखिएगा, और मेरी प्रोफाइल ना तो बिल्कुल देखिए और ना ही वो कोई बेंचमार्क है। अगर आपने प्रोफाइल के लिए, डिस्क्रिप्शंस के लिए प्रोफाइल देखनी है, आई रिकमेंडेड यू हाईली टू ऑल ऑफ यू टू गो एंड विजिट द प्रोफाइल ऑफ रहमत एम्पावरमेंट वाला। ओके सर मैम। रहमत की प्रोफाइल को कीजिए, और डिस्क्रिप्शन के लिए उनकी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से जो है आप स्क्रॉल कर सकते हैं। जितना खंगाले वो बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन वो लिखते हैं, हम सब भी उनको फॉलो करते हैं। तो मेरे भी अभी भी बहुत सारी गलती है जिनको इम्प्रूव होने की जरूरत है, बट ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब। चले मैम ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आपने एक मुझे वो दे दिया, सैंपल देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया। पर मैम आप देखें, जब मैं वहां से देखूंगी कोई चीज ऐसी जो मुझे, अगर आप जैसे आप मेरी टीचर है ना, हम आमने सामने बैठे हैं, आप हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अपने टीचर की जो बात होती है वो बड़ी एक याद रह जाती है। फिर जब बंदा किसी नमूने को, किसी मॉडल को जाके देखता है ना, वो इंस्ट्रक्शन, वो डांट और वो प्यार वाला थप्पड़ वो याद रहता है। एक मिनट। तो वो याद रहता है कि हमारी टीचर ने ये कहा था, यहाँ ऐसे ऐसे है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक से हट रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आप हमें ना मतलब ये बताएं, जैसे मैंने एक दफा बनाई ना, तो गलती से मेरे से ना वो, ऑब्वियसली इसका मतलब है मैंने प्रॉम्प्ट लिखते हुए गलती की, तो वो हैशटैग ना बीच बीच में से पूरी स्टार्ट से एंड तक मिक्स हो गए। मैंने बैठ के एक एक को दोबारा बनाने के बजाय पहले उसको मैंने वो उसको मतलब डिलीट करती गई। तो आप क्या मतलब हमें वैसे खुद से एडवाइस करेंगे, क्योंकि बाज़-औक़ात आपके ऐसे स्टूडेंट भी मुझ जैसे बैठे होंगे जो बाज़-औक़ात नहीं भी खोलते, खुद से ऐसी प्रॉम्प्ट देने लगते हैं। हमें लिखते हुए स्पेशली हम अपने नोट्स में ये नोट कर लें कि हमने लिखते हुए इस चीज़ को इंतहाई ध्यान में रखना है कि 2-3 बातें जो मेजर हैं, अगर हम इतना स्ट्रगल करने वाले बच्चे ना भी हों, तो हम आपके उन अल्फाजों को लिख लें अपने पास, ताकि हमें फिर ना ऐसी कोई गलती हो, जानबूझ के ना हो, वैसे तो ऑब्वियसली होगी मैम। थैंक यू। जी जी जरूर। बहुत शुक्रिया मिस लैला, मैं दोबारा बता देती हूँ डिस्क्रिप्शन के सारी चीजें, ताकि आप सबके लिए अलाइन हो जाए। जी इशान, आपको कुछ कहना है? जी मैम, मैंने कहना है कि लाइक स्टोरी पोस्ट में जब हम टाइटल देते हैं ना, वो इंस्टाग्राम पे वो टाइटल कट हो जाता है। वो कहते हैं कि अलाउ नहीं है ज्यादा वर्ड्स। मेरे एक स्टोरी पोस्ट के नीचे ना उसका टाइटल हट गया, वो कहते हैं अलाउ नहीं हाँ होते ज्यादा वर्ड्स। हाँ एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। इंस्टाग्राम पे ये होता है कि आपकी स्टोरी पोस्टिंग अगर बहुत ज्यादा है ना, तो उसकी वजह से आपको अलाउ नहीं करता। आप उसमें थोड़ी सी अगर आप स्मार्टनेस अपनी यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आसान हो सकती है आपके लिए, कि आप उर्दू के कंटेंट को रिमूव कर दें इंस्टाग्राम से और सिर्फ इंग्लिश का कंटेंट पोस्ट करें। मैम बाकी डिस्क्रिप्शन पता नहीं, मैं लगाती तो पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन लगाती हूँ सारे डिस्क्रिप्शन। अभी मैं बता रही हूँ, सारे सैंपल मेरे पास मौजूद है। एक मिनट दे दो बस मुझे, मैं अभी शेयर कर रही हूँ आप सबके लिए, क्योंकि मैंने आज कुछ बहुत सारे प्रोफाइल्स को देखा और मेरे पास आज काफी टाइम था ये सब करने को। आई डिड इट, और इंशाल्लाह अगले 2 दिन मेरा यही काम है। और आप में से बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो ये सब कर रहे हैं, उन सबकी प्रोफाइल्स को वन बाय वन मैं शेयर करूंगी, और आज कैटेगोरिकली बताऊंगी किस किस क्या मिस्टेक है। और हमारे जो भाई हैं
अहमद मुस्तफा भाई। अहमद भाई, मुझे ना आपके बहुत पुराने वाले जो है वो एआई सेशन शो हुए, जो पहले 2 फर्स्ट एआई सेशन आपने किए थे। प्रोबेबली मैं उम्मीद है कि अब आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे कि आपका कैमरा ऑफ था उसमें। तो कैमरा ऑन रख के हमने फॉर द होल 25 मिनट्स हमने ऑन कैमरा रह के अपने एआई सेशन को भी कंप्लीट करना होता है, और इसके साथ ही साथ अगर हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं ना, तो भी हमें 1 सेकंड के लिए भी कैमरा ऑफ करना अलाउ नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब आप कैमरा ऑन के बगैर अगर काम करते हैं ना, तो उसमें आपकी कनेक्टिविटी नहीं फील होती आपकी ऑडियंस को आपके साथ। तो इसलिए आपको ऑन कैमरा आपको ये सारे काम करने हैं। आई रियली अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम आता है, खुद को भी थोड़ी कैमरा शाइनेस होती है, आपने कभी फील किया होता है कि कैमरा कभी फेस करना है, ये सारी चीजें। बट हर बार जो है वो ऐसा होता है, पहली बार तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है ना। शुरू में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं जो काम करती थी तो मैं किस तरह करती थी, पर ग्रेजुअली एंड स्लोली फिर मैंने भी इन चीजों को ओवरकम कर लिया। तो आई होप कि आप जो है 1 महीना गुजर के आप काफी सारी चीजें इम्प्रूव हो चुकी होंगी। तो अब हम चलते हैं वन बाय वन मिस्टेक्स की तरफ, ताकि आप सब चीजें जो है वो इम्प्रूव करना शुरू कर दें। तो अभी तक जिसकी प्रोफाइल सबसे ज्यादा मुझे शो होती है, आई होप मेरी स्क्रीन शेयर है, सबसे पहले मुझे ये कंफर्म कर दीजिएगा, ये ना स्क्रीन शेयर में। ओके, एक तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं आप सबको अभी जो है वो ग्रुप में एक लिंक भेज रही हूँ, रिहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज का। प्लीज इस पेज को आप सब लाइक कर दें, ये बहुत जरूरी है, और ताकि आपको डे टू डे सारी अपडेट्स जो है इस पेज के थ्रू भी मिलती रहे। ठीक है, इस पेज को लाइक कर लीजिएगा, मैं अभी ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करी आपको। ओके जी, तो अब हम चलते हैं वन बाय वन प्रोफाइल की तरफ। तो सबसे पहले जो मेरे पास जिसको बताने के लिए है वो है मीरब फातिमा। मीरब फातिमा, एक तो मुझे आपका अभी तक वाला नहीं समझ में आया कि आपने अपने लिए कौन सी वाली सेलेक्ट करना है। पीस वाली, अरे वाह जबरदस्त। ये आज लगा है मीरब, मैंने काफी दिन पहले तो नहीं देखा इसको। सबसे पहले मेरी बहन मीरब, एक तो अपना कवर फोटो चेंज कर। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये तो कवर फोटो चेंज कर लो, ये कवर फोटो नहीं है हमारा, ठीक है। ये हमारा रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट का लोगो है। जब आपने कवर फोटो लगाना है ना, तो जो पेज मैंने अभी आपको इस पेज को लाइक कर, उसी के कवर फोटो को सेव कर ले अपने लैपटॉप में, और उस कवर फोटो को ऐड कर, ठीक है। ओके चलो, और मैं बता दूं कि मंडे से ही आप सबकी प्रैक्टिस होगी कि आप सब अपनी अपनी प्रोफाइल लाजमी शेयर करेंगे क्लास के शुरू के 10 मिनट में, ठीक है, ताकि रोजाना आप सबकी प्रोफाइल्स को डायरेक्टली जो है वो देख के आपको गाइड कर दिया जाए। अच्छा, एक और चीज, मेरा आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो पिन नहीं किया हुआ। अभी देखिए सबसे पहले जो विशाल की पोस्ट शो हो रही है, आपका इंट्रोडक्शन नहीं शो हो रहा, तो आपका इंट्रोडक्शन आपने कल में बैठ के ढूंढना है और ढूंढ के उसको पिन कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि ये मीरब ने हमारे लिए बनाई है हाउ एआई कैन इनहेंस एवरीडे लाइफ। अब ये सिर्फ एक लिखा हुआ है टॉपिक, जिसपे मीरब ने जो है वो बड़ी अच्छी अपनी फेसलेस वीडियो क्रिएट की है, और उसके साथ ही साथ उसके नीचे डायरेक्टली हैशटैग आ गया, और हैशटैग भी प्रॉपरली नहीं लगे हुए। अगर आपने टैग करना है ना किसी को, तो हैशटैग में नहीं टैग करते मीरब। जब हम वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं ना यहाँ पे, तो नीचे ना एक ब्लू कलर का आइकन आता है ग्रीन के साथ, ग्रीन पे क्लिक करके हम वीडियो अपलोड करते हैं, ब्लू पे क्लिक करके हमने टैग पीपल को टैग करना होता है। तो वहां आपने टैग करना है दौलत एजुकेशन वाला को और मरियम ट्रेनिंग वाली को, ठीक है। इन दो लोगों को आपने टैग करना है, और वो किस तरह करना है कि जो ब्लू आइकन आएगा उसके ऊपर क्लिक करके आपने उनको टैग करना। अभी आप ये डिस्क्रिप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी चाहिए थी आपको, हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पे, और ये चैट जीपीटी। अब ये देखिए, एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आएगा कि जैसे ही मैं फेसबुक खोलूंगी मीरब का, तो मुझे समझ नहीं आई कि मीरब ने अब तक कितनी फेसलेस बना ली है। यू गॉट माय पॉइंट। एक तो ये बात काउंटडाउन रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आपने अब तक कितनी फेसलेस वीडियोस को कंप्लीट कर लिया, अपने लिए भी और हमारे लिए भी, दोनों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, ताकि दोनों आराम से एक दूसरे के लिए काम कर सके, ठीक है।
आप चैट जीपीटी पे आ गए, आपने नहीं यूज करी हाँ स्कूल टास्क हेल्पर जीपीटी, तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अब आप क्या करेंगे, इस टॉपिक को कॉपी कीजिए और डायरेक्ट चैट जीपीटी को ये टॉपिक दे दें। आपने इसको प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है। अभी आपके लिए जब आप लिखते हैं कि सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, ये ऑटोमेटिकली बहुत शॉर्ट और बहुत कंसाइज आपके लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन बनाएगा। आपने एंटर प्रेस किया और आप ये देखिए कि 1 मिनट लगेगा आपकी ये डिस्क्रिप्शन बन जाएगी। जब तक ये डिस्क्रिप्शन बना रहा है तब तक आप अपना कैनवा पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए एक काम तो आसान हो गया, दूसरा उसने खुद ही आपके लिए वो पूरी डिस्क्रिप्शन अलाइन कर दी। सी अब उसने हैशटैग भी दे दिए हमें और बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन बना के दे दी आपको, जो कि अभी आप खुद भी इसको पढ़ना नहीं चाह रहे कि मैं पढ़ूं। जैसे अभी मैं साथ साथ कैनवा भी बना रही हूँ, तो क्या मैं स्क्रीन पे हूँ या उस स्क्रीन पे जाऊँ। यहाँ से इसका जो है वो वॉल्यूम ऑन कर दे और उसके बाद इसका जो स्पीकर है उसको ऑन करके सुनो और साथ साथ अपना कैनवा। Here's a polished description you can use for your faceless video post. How AI can enhance everyday life. Artificial intelligence isn't just about robots or futuristic technology. It's already transforming the way we live, work, and connect every single day. From simplifying daily tasks to boosting productivity, AI is making life smarter and more efficient. In this video, you'll explore how AI is assisting with time management and reminders, powering smart home devices for convenience, enhancing healthcare and fitness tracking, transforming learning and education, making communication faster and easier. AI is no longer the future, it's the present, and it's enhancing everyday life in ways we often don't even notice. Watch the full video and see how AI is shaping your world. Artificial intelligence, future of work, everyday AI, smart living, innovation. You want me to also make shorter captions, 1 to 2 lines, for Instagram, TikTok style posting, or just this longer version for platforms like LinkedIn, Facebook, YouTube? सी उसने आपको ये भी बता दिया कि इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन आपने 3 प्लेटफॉर्म पे लगानी है, जिसमें लिंक्डइन आएगा, फेसबुक आएगा और आपका यूट्यूब आएगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे इसी को पोस्ट करना है तो आपको इसको शॉर्टर जो है वो रखना है, इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड कर सकते। तो आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि टिकटॉक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए मुझे कौन सी डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है, ठीक है। तो प्लीज इसको यूज करना शुरू कर दे चैट जीपीटी को, ताकि आपके लिए जिंदगी आसान हो जाए और आपके बहुत सारे काम आपके लिए चैट जीपीटी कर दे, आपको परेशानी की जरूरत नहीं होगी। अब ये डिस्क्रिप्शन जब जो है कॉपी करके मैं आपको मेरा वर्क भी भेज रही हूँ, प्लीज इसको एडिट करके लगाइएगा और फिर आप देखिएगा कि इस डिस्क्रिप्शन में और जो डिस्क्रिप्शन आपने पहले लगाई हुई थी उसमें क्या डिफरेंस, ठीक है। यस पीछे हो दो। ठीक है। प्लीज इसको अपनी आदत बना लीजिए। चैट जीपीटी को रोज 10 मिनट जो बात करनी है उसके साथ साथ चैट जीपीटी को रोज 10 मिनट यूज करना शुरू कर दें, ठीक। जी मीरा, मैंने आपको भेज दिया, प्लीज इसको एडिट करके चेंज कर दें। ओके मैम। अच्छा जी, ये एक चीज थी जो कि मुझे बतानी थी डिस्क्रिप्शन के बारे में। अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पे, ये देखिए मीरा, आपने अपना टास्क पोस्ट किया है क्विज का। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने इसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं है बेटे, अब इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप चैट जीपीटी से ही लेंगे।
ये टास्क नंबर 3 था हमारा। ओए अमी सो जाओ मेरी शहजादी, बाबा साथ सो जाओ। स्पीकर ऑफ है। आपका माइक Sorry. खुला हुआ है अपने सारा। ओके, अब जैसे ही मैंने ये लिखा उसने मुझे पूरी डिस्क्रिप्शन बना के दे दी, और यही डिस्क्रिप्शन आप मैं दोबारा से लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकती हूँ और फेसबुक पे भी पोस्ट कर दूंगी, जिसके साथ उसने अच्छे से हैशटैग भी बना दिए और ये बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन भी आपके लिए बना दी। तो आप जो कुछ भी करते हैं उस टाइटल को, उस टास्क को प्लीज चैट जीपीटी के साथ शेयर कीजिए, ताकि चैट जीपीटी आपको एक अच्छी और प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे। और मेरा इसको भी आपने टैग करना है। ये जो आप हैशटैग यूज करते हैं ना, ये टैगिंग नहीं होती, ये सिर्फ हैशटैग होते हैं। और एक हैशटैग के बाद आपको स्पेस देनी है। जैसे आपने ये लिखा ना रेहान अल्लाह वाला, तो इसके बाद यहाँ पे आपको सिंगल स्पेस देनी है, फिर ये ब्लू होगा। उसके बाद आपने हैशटैग मरियम का ट्रेनिंग वाले लिखा है, तो उसके बाद फिर सिंगल स्पेस देंगे तो अगला हैशटैग ब्लू होगा। तो बजाय इसके कि आप इसको मैनुअली कीजिए, आप यहाँ पे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दीजिए। चैट जीपीटी के आने से आपकी जिंदगी आसान, आपको तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपली यहाँ से कॉपी करे और वहां जाके पेस्ट कर दे बस। और आपके लिए हैशटैग भी उसने खुद बना दिए, स्पेसिंग भी ऐड कर दी, और बहुत अच्छे से आपके ये वाला हैशटैग वाला मसला भी खत्म। अब ये देखिए यहाँ पे आपने इस लिंक को अगर थोड़ा सा टाइम दे देती लिंक को, तो लिंक आपके लिए प्रॉपर इस तरह, जैसे इशार का जो क्विज है ना, इसका वो प्रॉपर फीचर नजर आ रहा है कि कैसा क्विज का इंटरफेस है। अगर आप भी अपना इस तरह से कर लेते तो ये और भी अच्छा हो जाता। ठीक है, आइंदा इसका ख्याल रखिएगा और इसको बेहतर कीजिएगा। अच्छा जी, ये आपका इंटरव्यू आ गया मेरे फातिमा का। चले साथ ही अब इंटरव्यू की डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं हम। A little star with a peaceful heart, क्या बात है, से निकलना एक बार खूब जी मिसर। अब ये देखिएगा इंटरव्यू की डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपको लिखना चाहिए था आपके जो आपका स्टूडियो है उसका टाइटल, आपके पॉडकास्ट का टाइटल वो लिखिए, और उसके साथ जिसको गेस्ट आपने इनवाइट किया है उस गेस्ट को आपने टैग करना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपने एपिसोड नंबर अनाउंस करना है कि आपका ये कितना एपिसोड नंबर है जिसको आपने इंटरव्यू करना शुरू किया। ठीक है, और उसके बाद फिर आप अपने गेस्ट के बारे में लिखेंगे अबाउट गेस्ट प्रॉपर हेडिंग के साथ। अगर मैं वापस जाऊं इस डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर की थी, तो मैंने उसके अंदर आपको पूरी डिस्क्रिप्शन इसी तरह से शेयर की थी जो कि सर रहमत एम्पावरमेंट वाला ने अपनी प्रोफाइल पे लगाई हुई है। वो न्यू टेम्पलेट है और वो टेम्पलेट पूरे का पूरा कॉपी करके मैंने आपको भेजा था, और लास्टली मैंने मैसेज लिखा था कि इसको आपने यूज करना है फॉर इंटरव्यू पर्पस। तो अगर आप उसी डिस्क्रिप्शन को यूज कर लेते हैं, और उस डिस्क्रिप्शन में आपने सिर्फ ये काम करना था कि आपने अबाउट मी सेक्शन जो है उसको चेंज करना था, और उसको चेंज करके आप सेव कर लेते अपने व्हाट्सएप के फोल्डर में। सी, ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे भेजी थी और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन फॉर इंटरव्यू। यहाँ पे इंपावरिंग माइंड्स लिखा था, आपने अपने पॉडकास्ट का नाम लिखना था, फीचरिंग मेरे फातिमा पीस वाली। अबाउट द गेस्ट में इनका ये जो आपने लिखा था ना मीट और ये सारी चीजें, फिर आपने अबाउट द गेस्ट के बारे में वो सारी चीजें लिखी थी। लास्टली आपने यहाँ पे ऐड करना था यू वांट टू कनेक्ट विद मीरब, सो प्लीज गो फॉर दीज लिंक्स। तो आपने उस गेस्ट के वो चारों लिंक्स शेयर करने थे। ठीक है, और फिर आपने लिखना था अबाउट मी अपने बारे में, और आपने अपने बारे में भी 2 सेंटेंस अपने ऐड करने थे, और फिर आपने अपने कॉन्टेक्ट ऐड करने थे कि आपके साथ कहाँ कहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। वो प्रोफाइल आपने अपनी शेयर कर दी थी। फेसबुक की प्रोफाइल शेयर नहीं कीजिए, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के तीनों लिंक्स आपके होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लास्ट में सर रहमत ने इसका एपिसोड नंबर लिखा है, बेसिकली एपिसोड नंबर आपके जब आप मीरब को टैग करेंगे तो उसके बाद आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अबाउट द गेस्ट से पहले आपका एपिसोड नंबर आता है। तो ये चीजें आपने ख्याल करनी है, और नेक्स्ट टाइम प्लीज इनको इम्प्रूव करना शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको सैंपल इसलिए भेजा था कि आप सब एक बार बना के रख लेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। जैसे अभी आपने लास्ट में अपने बारे में लिखे ना होस्ट इरम मुश्ताक, तो आपको होस्ट के अपने जो है वो भी लिंक्स प्रोवाइड करने हैं,
इसी तरह से आपने लिंक्स प्रोवाइड करने हैं अपने गेस्ट के। सॉन्ग नंबर 6 शाल का ठीक हो गया। इसी तरह से मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जब कैनवा पोस्ट बना ले तो कैनवा पोस्ट चैट जीपीटी को देते। चैट जीपीटी आपके लिए बहुत अच्छे से, जैसे ये शाल की उसने पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी है, आपके लिए भी डिस्क्रिप्शन लिख देगा। और हर टास्क में आपका टास्क नंबर ऐड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये हमारी जो मीरा फातिमा है, उन्होंने कैनवा पोस्ट नंबर तो लिखा है लेकिन आगे नंबर नहीं लिखा। तो फातिमा वो नंबर भी साथ ऐड करें कि ये 5th नंबर पे है, 6th नंबर पे है, 7th नंबर पे है, कौन सा नंबर है। और अगर आपने अपनी पिक्चर को ऐड करना है तो जो आपने ऑथर का पिक्चर ऐड किया उसके साइज को कंपेरेबल आपने छोटा रखना है अपनी पिक्चर को, ठीक है। उनका पिक्चर को साइज को बड़ा करते और कॉर्नर में नहीं लगाए, मिडल में लगा देते, यहाँ पे रेहान अल्लाह वाला के नेम के बिल्कुल नीचे, ठीक है। और ऊपर आपने अपना लोगो ऐड करना है रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट का। जो पेज मैंने शेयर किया है उसके प्रोफाइल पिक्चर में जो लगा हुआ है वो लोगो है, और जो उसकी कवर फोटो में लगा हुआ है वो आप सबका कवर फोटो है, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा और अपने कैनवा पोस्ट के अंदर जिसको कैनवा पे डिजाइन करते हैं लाजमी उसके अंदर इसको ऐड करें। टास्क नंबर 3 अकॉर्डिंग टू माय फर्स्ट प्रोडक्टिविटी ऐप। ओके, जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज अभी देखिए आप सब के इशाल के टास्क मेरे की वॉल पे हमें बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। दो कि हम सब एक दूसरे को टैग करते हैं और एक दूसरे की वॉल पे हमारे ये नोटिफिकेशन जाने चाहिए और हम सबको एक दूसरे के बारे में पता चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जब हम एक दूसरे की वॉल पे पोस्टिंग करना शुरू कर देंगे ना तो आपके अपने टास्क बहुत पीछे रह जाएंगे। तो जो आपके मतलब मेरा के इशाल के, मिसेरम के, अहमद भाई के, इन सब के टास्क आना शुरू हो जाएंगे। तो जो आपकी अपनी वॉल है ना वो ऐसे लगता है दूसरों का लिए आपने घर सजाया हुआ है, आपका अपनी प्रेजेंस कुछ नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करें एक दूसरे को टैग करते हैं, बहुत अच्छी बात है ताकि एक दूसरे को नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन उसके बाद आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी टैगिंग को। तो प्लीज अपनी अपनी टैगिंग में जाके उसको इनेबल कर दें कि आपकी परमिशन के बगैर कोई आपकी वॉल पे आपको टैग नहीं कर सकता, ठीक है। नोटिफिकेशन जरूर आएगा कि आपको आपको इशाल ने टैग किया है, मरियम ने टैग किया है, रेहान ने टैग किया है या दौरा साहब ने टैग किया, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन से जाके उस पोस्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो फिर आपकी वॉल पे दूसरे ज्यादा नजर आएंगे, आप कम नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं स्टोरी पोस्टिंग की। अब जैसे ही हमारी मीरब ने माजिद के साथ मेरे सारे टास्क आप ये कि मैंने बता दिए, दो के बाकी सबकी भी बहुत गलती है, लेकिन आपकी प्रोफाइल पहले खोल ली थी मैंने, इसीलिए यही शुरू कर दिया सारी चीजें। अब मेरे भाभी ने यहाँ पे हमारे जो है वो टाइटल भी ऐड नहीं किया और स्टोरी नंबर भी ऐड नहीं किया। तो जब मैंने पहले दिन बताया था तो मैंने सबसे पहले बताया था कि आपने सबसे पहले पोस्टिंग से पहले लिखना है स्टोरी पोस्ट नंबर, और वो 1 2 3 4 5 जितना नंबर है वो ऐड कर दे। देन एंटर प्रेस कीजिए, एक स्पेस दीजिए और फिर एंटर प्रेस कीजिए और फिर स्टोरी को पोस्ट करें। स्टोरी पोस्ट करने से उसका चैट जीपीटी प्रॉपर टाइटल लिख के देता है, उस टाइटल को बहुत विजिबल होना चाहिए और उसके बाद एक स्पेस आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने 2 पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड किया ना, ये बहुत अच्छा लगा। इस तरह से आपने टाइटल के बाद एक स्पेस देनी है और फिर आपने बाकी स्टोरी को ऐड करना है। लास्टली ख्याल रखना कि आपकी स्टोरी के अंदर मॉरल जरूर होना चाहिए, ताकि आपकी स्टोरी को अगर कोई नहीं पढ़ना चाह रहा तो आपके वो 2-3 सेंटेंस मॉरल को समझ जाए पढ़ के कि इसकी स्टोरी के अंदर मैसेज क्या था, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलर मैंने में मेरा यहाँ से टैग नहीं करना, और टैग करना है तो वही ब्लू आइकन से जाके आपने टैग करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा वेरी गुड मीरम, अब ये सबसे अच्छी आपकी ये वाली डिस्क्रिप्शन लगी हुई है। इसी तरह से आपकी बाकी सारी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। और ये जो लिंक हम ऐड करते हैं ना मेरी बहन, इस लिंक को हम करते हैं आखिर में ऐड। डिस्क्रिप्शन पहले ऐड होती है और डिस्क्रिप्शन के यहाँ नीचे में जाके हैशटैग के बाद आपका हैशटैग से पहले अपना लिंक ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये जो इतनी मेहनत करके आपने खुद ये सारी डिस्क्रिप्शन ऐड की है ना, ये चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, चैट जीपीटी आपको साथ में हैशटैग दे देता है और फिर आप हैशटैग से पहले अपना लिंक ऐड कर देते, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी लगती, जो कि अभी बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी से कराना शुरू कर देंगे तो चीजें आसान हो जाएगी, खुद करो तो ये तो बहुत टाइम लगता है।
हाँ, यहाँ पे भी अब आपने स्टोरी लिखा है, जबकि यहाँ पे टाइटल आना चाहिए था कि टाइटल क्या है आपकी स्टोरी का, और फिर आपने आगे स्टोरी क्या शेयर किया वो। ठीक है, इन सब चीजों का आप थोड़ा थोड़ा करके ख्याल कर लीजिएगा। ओके, आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी सबको डिस्क्रिप्शन के बारे में। एंड प्लीज मैं बार बार कह रही हूँ कि कल से ऑनवर्ड आपकी ये सारी चीजें बहुत स्ट्रिक्टली चेक होंगी। एंड आई डू माई बेस्ट कि मैं इंशाल्लाह सब चीजों को खुद मॉनिटर करूँ और आपकी डायरेक्ट आपके पोस्ट पे, आपके लिंक्डइन पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ही कमेंट करूंगा। ठीक है, तो मैम इसलिए इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। मैम एक दफा बता देना जब हम टैग करते हैं तो वो आप बता देना, दोबारा उसको बता दें प्लीज। कैसे मैम टैग करते हैं तो वो आप कह रही थी ना कि उसको सारे मतलब किसी दूसरे को टैग करते हैं तो हमारा सारा उस पर आ जाता है। न्यू लर्न में लिखा भी था बट और कंसीडर इट फाइन। मिस गुलशान सर, मेरी सिर्फ वन लीव है, कैमरा लाइव फेसबुक ओके। जी, मैं आपसे ये कह रही थी कि हमारी फेसबुक के अंदर ना एक सेटिंग होती है कि जो लोग हमें टैग कर रहे होते हैं ना, उनको हमें खुद कंट्रोल करना होता है। ठीक है, अब वरना आपकी कजन, आपके सारे ये क्लास फेलोज, मरियम, जब ये सब लोग आपको टैग करना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी वॉल के ऊपर बाकी सब ज्यादा नजर आएंगे, आप कम नजर आएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन सबकी टैगिंग को कंट्रोल कर लें, तो आप अपनी यूट्यूब की फेसबुक की सेटिंग में जाके उस टैगिंग वाले ऑप्शन को सर्च कीजिएगा और वहां पे आपके पास शो हो जाएगा कि आप किस किस को टॉगल को ऑफ करना चाहेंगे, किस किस टॉगल को ऑन करेंगे, तो आपकी टैगिंग ऑफ हो जाएगी। ठीक है, कि आपको लोग टैग तो करें लेकिन आपको सिर्फ नोटिफिकेशन है, आपकी वॉल पे टैगिंग ना हो। जब तक आप खुद अलाउ नहीं करेंगे आपकी वॉल पे कुछ टैग नहीं हो पाए। ठीक है, ओके पार्टिसिपेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड द टास्क। अब हम टास्क की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज की टेड टॉक देख लेते हैं, और अब हमने टेड टॉक देखनी है क्लास के अंदर बैठ के। ओके, आज की टेड टॉक विल शेयर द स्क्रीन। फारूक भाई प्लीज आप स्क्रीन शेयर करेंगे। I'm sharing the link in the Zoom chat. Click on the link and then you have to share the screen. So guys, take your notepad and notepads. Let's take the key takeaways and then share it one by one. Okay, ji. Today's TED Talk is about study smarter, not harder by Kiki Fan. So let's watch it together. And please turn on your cameras with your copy pencil or the notebook or digital notepad. It's up to you. Whatever you want to have it, you can go for it. तो फरूक भाई जब स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपने स्क्रीन पे जाना है, राइट साइड में लेआउट्स के नीचे देखिएगा 3 स्क्वायर बने होंगे, उनमें से पहले स्क्वायर पे चेक लगा दीजिए शेयर साउंड पे, तो आपका साउंड शेयर हो जाएगा। एंड वन बाय वन एवरी पार्टिसिपेंट हैव टू डू इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। अब आपने सबने बारी बारी इसकी प्रैक्टिस करनी है और सब ये करेंगे, और उसके बाद आपकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इसी तरह से आपको दी जाएंगी ताकि आप सब ये करते रहे। मिस तो रिपीट करिए, कर सकती हैं आप ये टास्क अभी आपने जो दिया है? आवाज ब्रेक हो गई। मैंने अभी जो टास्क दिया है उसके बारे में पूछ रही हैं? जी जी, अभी आपने क्या टिक करने को बोला है वन बाय वन, ये थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। नहीं, मैंने ये बोला है कि जैसे आज फरूक भाई से मैंने रिक्वेस्ट किया ना कि वो स्क्रीन शेयर करेंगे, तो इसी तरह से अब वन बाय वन हर पार्टिसिपेंट्स को कहा जाएगा कि वो अपनी स्क्रीन शेयर कर ले, ताकि आप लोग स्क्रीन शेयर करते हुए जो 2000 चीजें हैं उनका ख्याल रखेंगे। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, फरूक भाई आप प्ले कीजिएगा। सो लेट्स वॉच द टेड टॉक। फरूक भाई इसकी स्क्रीन को इनलार्ज कर दे। आपका साउंड शेयर नहीं है फरूक भाई,
आपने साउंड शेयर नहीं किया हुआ। अच्छा, आप स्क्रीन स्टॉप नहीं करेंगे। आप स्क्रीन के ऊपर ऐसे एक ब्लैक कलर की पट्टी आ रही है, स्ट्रिप जो होती है, उसके राइट राइट मोर का ऑप्शन है, उस मोर पे क्लिक करें और वहां पे आपको सेकंड और थर्ड लास्ट ऑप्शन मिलेगा, शेयर कंप्यूटर साउंड। उस शेयर कंप्यूटर साउंड पे क्लिक करें तो मोनो या स्टीरियो में से किसी को भी क्लिक कर दे तो साउंड शेयर हो जाएगा। ओके, मैंने कर दी। ओके, नाउ क्लिक फ्रॉम द स्टार। क्लिक करें, good to go. Do you dread doing homework? Do you steer clear when it's study time? You're definitely not alone. When it's time to sit down to do some work, we tend to roll our eyes, we find distractions, and we suddenly become really interested in tidying our rooms. It's a natural reaction. At some point, every one of us who has tried to get some work done will feel like it's the last thing in the world that we want to do. But what if I told you it doesn't have to be like this? What if I told you that there is a better way to do it that will not only help you study better, but more importantly, study less? Yes, study less. Studying itself is a dull and boring chore. No one wants to spend more time studying than they need to. But what if we can create the conditions in your body and external environment to successfully learn and retain information better and faster? Learning effective study techniques can ensure that you're fully prepared for your tests, midterms, and exams. Because when you know what works, you can approach any project with confidence and can crush any test anxiety. The strategies that I'm about to share with you have improved not just my test scores, but my mood and my whole entire outlook towards studying. It has improved my life. So I hope you will also benefit from them and discover which type of studying works best for you. There are massive benefits in setting aside some focus time during your day. I like to start my focus time at around 7 p.m. It's when I've just had my dinner, I'm done with all of my after-school classes, and I'm ready to settle in and do some work. In the beginning, I didn't really have a schedule, and I just did my homework whenever I had time. But then there were always interruptions. After school activities, my favorite show, and even dinner time. And every day would be different. It was quite disorganized, and I ended up not finishing some of my work on time. At times, I had to stay up until really late, and of course, I won't have enough sleep. This would go on for days. Unfortunately, it affected my grades, my schedule, and even my overall mood. Nowadays, I make sure I am more organized with my time, and I make sure my family member knows that it is my study time, so they respect that time as well. The time that you choose as your focus time is up to you, of course, but setting up this appointment with yourself will help you be more committed. Consistency breeds success, so organize your calendar well, pencil in your reading time, study time, and yes, even playtime, and stick to it. Where you can study can have a massive impact on how you study. As comfortable as it might be, laying in bed or lounging on your sofa will not help you do better, quicker, and more effective work. You need a flat surface with a suitable height and a comfortable ergonomic chair. Now, let's tidy it up a bit. This means no dirty plates from this afternoon's lunch, no magazines or even books to distract you, and more importantly, no mobile devices to tempt you. Have exactly what you need to get the work done. Books, stationery, the computer if you're using it, and here's a good suggestion, drinks and a snack. I don't know about you, but I can't stay focused when I'm hungry. So having water or juice and some healthy snacks like nuts or fruits keeps me satisfied for a longer time. It also keeps me from getting up often
and running the risk of being distracted and interrupted. Organizing your workspace might take an extra 5 minutes at the beginning, but will save you so much time during the process. Remember, clutter competes for attention, so make your space neat and tidy. Very few of us have dedicated spaces in our homes where we can shut out the outside world and focus. Most of us have shared spaces. We have siblings playing in the background, mom may be in the kitchen cooking, dad may be watching the news on TV. Life goes on and we can't stop that. But we can control our immediate environment. We can control what we are listening to. Ever since I came across this app that plays ambient sounds, I found I can block out all the distracting noises and really focus on my work. I especially like to listen to the sounds of nature, the soothing drizzle of rain, the crackling sounds of a campfire, and the soft chirping of a bird song are all excellent ways of shutting off the outside world and focus on the task at hand. There are lots of good options where you can find a huge selection of these kinds of sounds. It's worth experimenting to figure out which ones works for you personally. Some people may find it hard to concentrate during complete silence. Some others may find it challenging to focus while the music is on. It's just a matter of choice. But studies have shown that certain types of music, especially classical music, can engage parts of your brain that help you pay attention and retain information. And of course, listening to music may improve your mood and change your whole outlook about studying in general. So plug in your headphones, disconnect from surroundings, and connect to your focus zone. And there you have it. Set up a routine, organize your workspace, and get in the mood with music. 3 small but very effective ways to get you in the habit of being more efficient and studying in less time. Up to 2 years ago, I used to spend more than 3 hours doing my schoolwork. I worked at odd hours, I wasn't organized, and got easily distracted and often interrupted. But by slowly and surely following these strategies, I find that I don't need more than 1 hour to complete all my assignments. That's something I'm proud to accomplish and would like to share with you today. But I'm not here to convince you that every minute I spend studying is full of fun and laughter, and that there's nothing else I'd rather do with that time. No, I'm also human and still a kid too. But we have to do it, no matter what. We just have to make the best of the situation and find ways to improve on it. So it's important that we develop these skills because it will benefit us for life. Some of us will truly never enjoy studying, and that's okay. But when you follow these strategies and put some work into scheduling your time to be more effective, it means you can spend less time studying, less time staring at a blank page, and less time worrying about the book you haven't opened yet. And when you spend less time doing all that, it means you get to spend so more time doing the things that you do enjoy. More time for friends, more time for games and laughter, and more time to just live your life. Effective learning starts with the right attitude from punishment, and so let's set ourselves up for success. Thank you so very much, Farooq Bhai, for playing this TEDx video. Okay, participants, let's go for the review session. Anybody who wants to give the review voluntarily, he or she can raise the hand. जी आसिफ भाई. मैम इस वीडियो में ये समझ आया कि स्टडी जो है एक ख़ास टाइम पे करें, कम वक्त में ज़्यादा स्टडी जो है सीखें, स्टडी कम करें लेकिन तवज्जो से करें, जो डिस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं वो अपनी स्टडी टेबल से हटा दें, जैसे मोबाइल वगैरह,
और अपने घर वालों को भी ये कहें कि हमें डिस्टर्ब ना करें, फोकस के साथ पढ़ें ताकि रिजल्ट आए, कम वक्त में ज़्यादातर पढ़ाई हो सके। जी। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। जी फारूक भाई। जी, इसमें जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आप तो स्केजुलिंग करें ना, बस कि आपने आप जो है वो अपने टाइम को प्लान करना है कि किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है और कितनी देर में अचीव करना है। फिर ये कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे आपने बचना है, ठीक है ना। और उसकी बात एग्जाम्पल उसने दी है कि जैसे यानी आप हेडफोन्स यूज़ करें और उसमें लाइट म्यूजिक ऐसे लगा लें अगर आप समझते हैं कि आप इस तरह से इंगेज हो सकते हैं तो अपने काम के अंदर। और लाइट स्नैक्स लेके बैठे, पानी वगैरह लेके बैठे और अपना पोस्चर जो है उसको बिल्कुल अपराइट रखें, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगी। आई थिंक इस तरह की चीज़ें जो और भी इस पर डिस्कस की। बहुत शुक्रिया फारूक सलीम भाई। जी ईशा, क्या सीखा आज की टेड टॉक से? सो यस मैम, यही कि जब हम लोग ज़्यादा घंटे के लिए बैठ के पढ़ते हैं तो इसमें उसने ये टिप्स दी है कि आप अगर खुद से सवाल जो आप पूछेंगे अपने आप से तो ज़्यादा आसानी होगी, या शॉर्ट शॉर्ट की पॉइंट्स या नोट्स बना लेंगे तो उसमें भी आसानी होगी आपके लिए। और बीच में ब्रेक ले लेके पढ़े तो सही होगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा उससे। और यही कि आप ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल और अंडरस्टैंडिंग है। तो हमें, और सबसे बड़ी बात कि अगर हम अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। सही हो गया। अब मुझे ये बताओ कि इशान, आप तो क्रैमिंग में बहुत अच्छे हो ना, तो जो क्रैमर होते हैं उनके लिए म्यूजिक कितना इफेक्टिव होता है? मतलब मुझे ये पता है कि जो मैथ्स वाले हैं, उनके लिए म्यूजिक बहुत इफेक्टिव है। वो ड्रामा भी देख सकते हैं, नॉवल भी पढ़ लेते हैं, साथ साथ मैथ भी कर लेते हैं। अब जो थ्योरेटिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं आप? मैम मुझे याद जल्दी हो जाता है, मतलब मैं रट्टा लगाती हूँ, मैं बता रही ना, मैं रट्टा लगाती हूँ, मैं अंडरस्टैंड बहुत कम करती हूँ, तो अभी आप जल्दी हो जाता अंडरस्टैंडिंग है। के अभी आप अंडरस्टैंडिंग की बातें कर रहे हो। यस, अब जब मैं सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मुझे भी अंडरस्टैंड करना चाहिए था, अंडरस्टैंड करके पढ़ना चाहिए था। चलो, थैंक यू सो मच। जी मिसाल, क्या सीखा आज आपने? अच्छा मरियम, इनकी स्टोरी में तो मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे ये मेरी खुद की स्टोरी हो। अ, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही एनवायरनमेंट चाहिए होता है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। तो ये जो ना कि स्टूडेंट भी 8 क्लास की थी, तो इन्होंने इसमें जो 3 पॉइंट हाईलाइट किए वो यही थे कि आपको एक अपना मुकर्रर वक्त कर लेना चाहिए पढ़ाई के लिए, कि आपने इस वक्त अपनी स्टडी करनी है, ठीक है। तो डेली बेस पे आप वो अपनी रूटीन को उस तरह से मैनेज कर लेते हो। और साथ में ये भी है कि अपना जो पढ़ाई के लिए माहौल अपना साफ सुथरा एक मुनज़्ज़म और पुरसकून जगह का आप इंतखाब कर लें। और तीसरा पॉइंट जो इसमें था वो ये था कि आप कोई म्यूजिक या कोई भी साउंड जिसमें कोई बारिश का हो जाए या कोई भी इस तरह का जो भी आपको सूट करे, तो वो म्यूजिक से भी मतलब आप ना काफी जिनको सूट करे। और साथ में ये भी है कि उन्होंने अपना भी बताया कि 3 घंटे का जो वो होमवर्क करती थी इस जो है शेड्यूल के साथ, उन्होंने वो सिर्फ 1 घंटे में ना मुकम्मल करना शुरू कर दिया। तो दिस इज अमेजिंग वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच। जी मैं सुपना, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया? मैम इसमें इन्होंने ये बताया है कि स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर, मतलब स्ट्रेटजीज बना के चले। और जो 3 पॉइंट्स में इन्होंने डिस्कस किए, एक उन्होंने किया एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटिशन, और एक इंटरलीविंग था मेरे ख्याल से। अच्छा, इंटरलीविंग बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें ये था कि जैसे अगर आप किसी एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं, साइंस से बोर हो जाते हैं, तो आप उर्दू पे शिफ्ट कर दो। उर्दू से बोर होते हैं तो आप मैथ्स पे शिफ्ट कर दो। और मतलब ये कि ये एक कंसिस्टेंसी एक सब्जेक्ट के साथ रखें। दूसरा जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा वो उन्होंने जो डिस्कस किया, मतलब बार बार दोहराना, यानी कि रेपिटेशन और रिकैपिचुलेशन। तो ये हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं और इसका बड़ा फायदा होता है। और जब बार बार किसी टॉपिक को या किसी पॉइंट को रिकैपिचुलेट किया जाए तो वो याद रह जाता है। तो मतलब वो अंडरस्टैंडेबल होता है, वो कहीं ना कहीं जाके ना बच्चे के माइंड में बैठ जाता है। तो ये बड़ा अच्छा मुझे इनका पॉइंट लगा। लेकिन आपको नहीं लगता रिकैप्चुलेट से बच्चे तंग आ जाते हैं? वो एक बार बात सुनना बड़ी बात है, और जब आप दूसरी बार सुनाते हो कहते क्या करिए, एक बार सुन तो लिए, कितनी बार सुनाई। मैम रिकैपिचुलेट मैं कभी भी खुद करने को ना प्रेफर नहीं करती।
मैं ये कहती हूँ कि आप लेट अगर आप क्लास में ना तो आप बच्चों से करवाएं, क्योंकि जब जबरदस्त। वो बताएंगे ना कि आपको आज के लेक्चर में हमारे क्या पॉइंट्स थे जो डिस्कस हुए, तो वो समझेंगे। अगर हमने ही मतलब बताना है सब कुछ, तो फिर तो वो स्पून फीडिंग कभी खत्म ही नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो वेरी मच मिस गुड। जी अहमद भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक बेसिकली तो इन्हें बताया कि दो किस्म के लोग होते हैं, जो जिनको दिन में पढ़ा जाता है और रात को। मैं पर्सनली खुद एक नाइट स्टूडेंट हूँ। मेरा फोकस ज़्यादा रात को होता है। और जो दूसरी बात उन्होंने की थी कि जो नॉइजी रूम के अंदर नहीं पढ़ा जाता है, जहाँ लोग होते हैं वहाँ नहीं। तो ये हमारा अपना होता है कि जब पेपर्स वाले होते हैं तो 1 मंथ पहले मैं और मेरी बहन, हमारा एक थर्ड रूम है, तो वहाँ पर अपने बैग लेकर सारी बुक्स वहाँ ले जाते हैं। तो एक तो वहाँ पर पढ़ा भी जाता है, एक क्योंकि माहौल होता है ना, माहौल बहुत ज़रूरी होता है। और ऑब्वियसली मैटर करता ही है। और हमें स्मार्टली पढ़ना चाहिए। बेशक 1 आवर दे दें, लेकिन 3 घंटे बैठ के आप सिर्फ बुक को घूरेंगे तो समझ आए ना, तो उसके वो वर्थ इट नहीं होता। तो हमें स्मार्टली पढ़ना चाहिए। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच अहमद भाई। लेकिन मेरा एक सवाल है, अब अगर एक इंसान जो बहुत क्वाइट प्लेस पे पढ़ेगा, उसको तो नींद ही बहुत जल्दी आती है, फिर वो क्या करे? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, एक पार्टनर भी रख लें। अब मेरे पास तो मेरी बहन है, तो हम लोग एक दूसरे को करते रहते हैं। तो इसलिए ओके, अब वो थैंक यू सो वेरी मच। मुझे हाँ हाँ, तो आपको क्या कहती हैं जब आपको नींद आती है तो? नहीं, लाइक मैं अगर डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, इवन मैं फोन भी उठा लेता हूँ, तो वो कहती है रखो फौरन। और मोस्टली सब्जेक्ट क्योंकि उसने मुझझसे पहले किए होते हैं, तो वो कहती है अब तुम करो। तो वो उससे सारे वो एक एक चीज सवाल सुनती है, और जब तक मैं क्लियर करता नहीं हूँ तो वो फिर मुझे फोन नहीं देती। तो इस तरह अच्छा क्या होता है। बात है, कितना अच्छा भाई है, बहन की बात मान लेता है। यहाँ भाई को कह दो फोन पकड़ा दो तो तब कहता है उठ के पकड़ो। थैंक यू सो वेरी मच अहमद भाई। जी आजम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, इसके अंदर जो चीज़ ख़ास तौर के ऊपर एक पॉइंट आउट जो मुझे हुई है, वो एक रट्टे वाली बात है कि रट्टे को जो है ना वो इन्होंने कहा है कि जी आप जो है ना वो समझ के पढ़ें, बजाय इसके कि आप जो है वो उस चीज़ को मतलब याद करके जो है ना वो आगे निकल जाएं। ठीक है। और दूसरा जो है वो इट्स लाइक के आपका जो है वो डेडिकेटेड और फोकस जो है ना वो आपका होना चाहिए, डेडिकेटेड स्पेस होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। और कोई भी काम अगर आप कर रहे हो इस चीज़ से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, तो उसके ऊपर आपका पूरा फोकस हो। और वो इस तरीके से हो सकता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो उस जगह के ऊपर। आपका जिस जगह के ऊपर आप बैठ के कोई भी काम कर रहे हो वो साफ सुथरा हो। ठीक है। मतलब वो उस जगह के ऊपर जो है वो आपका चीज़ें फैली भी ना हो, मतलब वो आपको चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और सिंपल एक मैसेज दिया है उसमें उन्होंने कि जी स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड वाली बात है कि स्मार्ट वेज के अंदर जो है वो कोशिश करेंगे आप सीखें, पढ़ें, और ज़्यादा जोर मतलब है जितना समझ में आता है वो समझें, और ठीक है स्मार्ट तरीके से लेके चलो। बस ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया आजम भाई, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं से पूछा। साहब ने मेरा नाम लिया जी जी मिस पूछा। है। जी मिस, मुझे तो यही समझ आया कि इन्होंने कहा है कि मेहनत करें, लेकिन मेहनत जो है ना वो अकल के साथ करें। इस तरह से करें कि आपका वक्त और आपकी तवानाई दोनों बच जाएं। मतलब उस तरह से ना पढ़े जिस तरह से पितरस बुखारी पढ़ते थे। ये वो उनका ये था ना, एक उर्दू की कहानी भी थी, सुबह सवेरे जो खुली आंख मेरी, कि जिस तरह से जी वो अरेंजमेंट करते रहते थे सारे का सारा, उस तरह से ना पढ़े ये जो है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक ना इशू आ जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो बहुत वेरी करते हैं। अगर एक बिल्कुल। बंदा जो है वो म्यूजिक सुनेगा, म्यूजिक अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो म्यूजिक, मैं अपनी बेटी की एग्जांपल दूं कि अगर उसके पास म्यूजिक लगा उसके पैर थिरकने लगते हैं। अब वो छोटी है, तो कुछ लोग जो होते हैं वो म्यूजिक सुनते हैं तो वो तो म्यूजिक के साथ मस्ती में आ जाते हैं। कुछ जो है वो अगर बिल्कुल कुछ होते हैं जिनके लिए जो है आइसोलेशन बड़ी जरूरी होती है लर्निंग के लिए, कि कुछ तो सो जाते हैं।
तो ये बड़ी अच्छी टेड टॉक है, लेकिन ये एप्लीकेबल जनरलाइज नहीं हो सकती। इसकी जनरलाइजेशन जो है ना वो एज सच नहीं हो सकती, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप अपने अपने टाइम को बचाएं और अकल मेहनत करें, लेकिन अकल के साथ मेहनत करें। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया मिस तुषार जी। शफीक भाई, क्या जी एनालिसिस है एक साहब के? हाँ जी, ये टेड टॉक बेसिकली जो आज देखी है, ये पहले वाली टेड टॉक से इंटायरली डिफरेंट है। पहले तो हम्म। बातें बताई गई हैं, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन पे एक ना फोकस था। लेकिन जो आज की टेडक्स टॉक है, ये बेसिकली हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग उसकी तरफ ये इशारा कर रही थी। तो इसमें जो सबसे मेन पॉइंट था जो मैंने कंक्लूड किया है, वो यही था कि हमें क्लटरिंग से बचना है और हमें फोकस्ड होके लर्निंग की तरफ जाना है। और इसमें जो मेन पॉइंट बताया गया है कि लर्निंग के लिए जो इन्वायरमेंट है वो हर स्टूडेंट अपनी तबीयत के मुताबिक सेट करे। जिस तरह ये वैसे अहमद मुस्तफ़ा भाई जो थे, ये जागने के तरीके बता रहे थे, तो अगर ये बुरा ना मनाए तो मैं इनको एक छोटा सा मेथड बता दूं। मैं अपने स्टूडेंट को अक्सर कहा करता हूँ कि अगर वो जागना चाहते हैं, तो ये मेरे उस्तादों ने मुझे बताया था, तो मैं अपने टीचर्स की बात आगे फैला रहा हूँ कि ये अपने थोड़े से बाल किसी धागे से या रस्सी से बांध के ऊपर किसी ना पंखे वगैरह से बांध लें। एक घंटा लगेगा तो अगले घंटा जो है ना ये सुकून से गुजरेगा। मतलब नींद नहीं आएगी, मुंह धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कह लें कि ये फोकस करना है अपनी एजुकेशन पे, तो वो डिफरेंट वेज हैं ये इसमें बताए गए हैं। तो ओवरऑल जो हमारा इन्वायरमेंट है उस पे एक अच्छी गुफ्तगू हुई। मुझे पसंद आई कि आज हमने थोड़ा सा इन्वायरमेंट को एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा चेंज किया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बहुत शुक्रिया शफीक भाई, थैंक यू सो वेरी मच। ओके मिस गुलशन जी, हमारे पास कौन रह गया है? और सुलेमान भाई, आप अपना माइक खोल दें। और ये मैं सिर्फ आज अलाउ कर रही हूँ, मंडे से अगर आपने कहा ना कि मेरा इंटरनेट इशू है और कैमरा बंद है, तो मैं आपको क्लास में अलाउ नहीं करूंगी। और ये इशू सुनते हुए मुझे महीना हो गया है। अब इसको फिक्स नहीं करना तो फिर मैं फिक्स कर लूंगी आपको खुद। जी, आप बताइए मुझे कि क्या सीखा आज की टेड टॉक से आपने? ये फायदा होता है कैमरा बंद रखने का। हेलो, आवाज आ रही है? जी सुलेमान हेलो साहब, जी जी आवाज आ रही है। मैम, टेड टॉक से मैंने यही सीखा है कि अगर आपने कोई काम करना है और हम्म। दूसरी चीज़ें, तो आपको फोकस लाजमी होना चाहिए उसके ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। पहली बात तो ये। हम्म। दूसरी बात ये, जब भी कोई काम करना है तो अनरिस्ट्रिक्ट चीज़ें, मतलब जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया या ऐसी कोई चीज़ हो गई जो आपको स्टडी करते वक्त आपको अट्रैक्ट करे और आपका दे मतलब आप मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मुझे जब नया नया पीएसपी मिला, पीएसपी मेरी ना फूफो ने मुझे बाय करके दिया, तो ना मेरी उसकी वजह से स्टडी में बहुत इफेक्ट पड़ने लग गया था। मतलब जैसे कि जब भी घर पे आना, टीवी के अंदर उसे लगाना पीएसपी को, क्योंकि वो सिम वाली होती थी, वो उसके साथ अटैच हो गई, टीवी के साथ लगा देना और वो स्टार्ट कर देना आते स्कूल से। तो ना फिर पापा ने वो ले ली। वो 2-3 हफ्ते जनाब आप कह सकते हैं झगड़े और ये वो पीएसपी के ऊपर लगे रहे, और एक दिन आगे वो खराब बेचारी हो गई। टाइम से हो रहा तो थी। लेकिन फिर पापा ने मुझे समझाया कि मैं तुम्हें एक शर्त के ऊपर वो ठीक करवा के दूंगा, और वो ये है कि तुम्हें एक हफ्ता उसे एक मुख्तसर टाइम रख लो, ताकि तुम्हारी स्टडी के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। तो फिर मैंने यही किया, मैंने एक मुख्तसर टाइम रख दिया, हफ्ता या इतवार। ये 2 दिन पापा मुझे पीएसपी, बाकी दिन मैं फिर स्टडी करता था। फिर उसमें फिर स्टडी में इजाफा, मार्क्स ग्रेट होने लग गए। मेरे पापा भी खुद टीचर हैं, दूसरों को भी यही सजेशंस देते हैं कि मोबाइल को छोड़ दो जब भी पेपर आने ना। पासिंग मार्क्स वाले बच्चे, खास मतलब जिन्होंने मैट्रिक पास करनी, उनको कहना है सब तो पहले मोबाइल बंद कर दो। मोबाइल ना छड़िया तो पास पास नहीं हो सकते तुसी कदे भी नहीं। यही मैं बस हम्म। कहना चाहता। चल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर तो अब आपके फादर साहब बहुत ही खिलाफ होंगे, क्योंकि हम तो कहते हैं मोबाइल से पढ़ने को।
एनी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका सलमान भाई। जी नसीमुल्लाह भाई, आपने हैंड रेज किया था। जी मैं ना इन्हीं की एक बात जो एक्टिव रिकॉल है ना इसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ, पूछता हूँ कि क्लास में कोई बच्चा जिम जाता है? तो कई बच्चे होते हैं जो जिम जा रहे होते हैं। मैं पूछता हूँ फर्स्ट डे आपने जो जो वेट लिफ्ट किया था वो कितना अप्रोक्सीमेट बता देते हैं, और कितने टाइम्स आपने किया वो एक आइडिया बताते हैं। तो अब कितना टाइम हुआ है, किसी को 1 मंथ, किसी को 2 4 मंथ। तो आप जो वेट लिफ्ट करते हैं वो पूछता हूँ, तो ग्लेरिंग डिफरेंस होता है। मैंने कहा डे 1 अगर आप करते तो ऐसा पॉसिबल था? वो कहते हैं नहीं। तो ये प्रैक्टिस जो है ना, ये इसी तरह रिकॉलिंग पावर है। हमारे स्टूडेंट्स को आमतौर पे इशू ये होता है कि नॉलेज आ जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन एग्जाम के करीब आके उनको सारा लगता है जैसे भूल गया है। और बार बार पहला चैप्टर, फिर 8वां चैप्टर, 10वां, फिर पहला, एग्जाम तक बुक छोड़ते ही नहीं है। रीजन ये होती है कि उनकी डिपेंडेंसी उनकी रिकॉलिंग पावर पे होती नहीं है, वो एनर्जाइज नहीं होती। तो उसको डे टू डे जो है ना हमें करना चाहिए। तो बच्चों को मैं इनकरेज करता हूँ, एक तो ये बड़ी अच्छी बात है उनकी जो है ना। और दूसरी एक और बात, जो प्रायोरिटाइज नहीं ना करता अपनी तरजीहात को, उसका पक्का एक इशू है कि उसने कंफर्म फेल होना है। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि वो मार्क्स नहीं लेगा, लेकिन अपने टारगेट को अचीव नहीं करेगा। ये दो बातें बहुत ज़बरदस्त हैं, ये मुझे तो ये अपील करती हैं, फैसिनेट करती हैं। बाकी भी सारी ठीक है, लेकिन अभी जो शफीक साहब ने बताया ना कि अहमद अपने बाल बांध ले, मैं इसके सरासर खिलाफ हूँ। बिल्कुल खिलाफ हूँ अहमद, मैं तेरे साथ हूँ। ये तशद्दुद वाली जिंदगी मैं इसके बिल्कुल कायल नहीं। नींद पूरी हो ना, चलिए, नींद पूरी हो तो फिर नींद आती नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी नींद पूरी नहीं होती? थैंक यू नसीमुल्लाह भाई। जी जावेद भाई, क्या सीखा आज की टेड टॉक से आपने? जी मैम, इंग्लिश मैम एकदम धांसू थी, पूरे सीख गया मैं तो। अरे वाह, जबरदस्त। क्या कुछ सीख लिया आपने? मैम फोकस तो मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा जो इन्वायरमेंट है पूरा खाली है। यहाँ पे कोई भी नहीं चाहता पढ़ने के लिए, और दूर दूर हम्म तक नहीं है। मेरे तो जो साथी है ना वो भी सब वैसे ही है, 300 400 में हम्म फंसे हुए हैं। तो इसलिए मैं तो हम्म। अकेला हूँ, लेकिन मैं पूरा अकेले जोर लगा रहा हूँ, जैसे तैसे करके मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह, बस आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस तो मेरी जारी है, बस एक दिक्कत आती है मुझे। अभी ये क्लास चलती है ना रात को, तो ये हम्म। मुझे नींद बहुत सताती है इस समय पे। अच्छा, उसका भी मैं बाद में पूरी नींद कैसे खत्म करते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया। ठीक ओके, ठीक। वी हैव जॉइंड बाय मिस सिद्रा। जी मिस सिद्रा, क्या सीखा आज की टेड टॉक से, क्या समझ में आया आपको? जी, आज की टिकटॉक इंटरेस्टिंग थी। मैंने सीखा काफी कुछ। उसमें यही था कि जो स्टडी है ना, वो बेसिकली तो हर बंदे को जाहिर है वो बोरिंग सी लगती है। तो अगर प्रैक्टिस करके इंसान अपने आप को जरा बेहतर बनाए, अपनी इन्वायरमेंट को, अपनी चीजों को जरा, यानी जो बेजार जिससे होता है वो चीजें हटा दे, जिससे डिस्ट्रैक्ट होता है वो चीजें हटा दे। अपनी जहां तक उसको फीलिंग होती है कि वो यहाँ आके डिस्टर्ब नहीं होगा, इजी फील कर रहा है, तो तब उसको पढ़ना चाहिए अपने टाइम के हिसाब से। और जैसे मेरे ख्याल से हम मुसलमान हैं, तो हमारे लिए तो ये चीज मायने ही नहीं रखती। जैसे कि हम लोग अगर नमाजें पढ़ते हैं, तो मैं जैसे अपनी हर चीज को मैनेज करती हूँ, फजर के बाद, फजर से जोहर तक मैंने ये चीज अपनी कंप्लीट करनी है, जोहर से असर तक मेरी ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरह मैं यानी ईशा तक अपनी हर चीज को ऐसे ही लेवल लेकर चलती हूँ, तो कभी भी मुझे इन चीजों की मुश्किल कभी हुई नहीं। तो मेरे ख्याल से हमें ये चीजें नहीं, मुश्किल देती नहीं है बंदे को। आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है मिस, थैंक यू सो बहुत वेरी मच अच्छी फॉर है, शेयरिंग। यानी कि नमाज के हिसाब से अगर आप करो ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज इंसान को डिस्टर्ब करती है। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। जी मिस थैंक यू। जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। पहले तो वो मैं जावेद भाई से पूछूं कि जो लफ्ज़ है धांसू, इसका क्या मतलब होता है, मुझे भी बता दें। और दूसरा ये कि जो टेड टॉक है उसके बारे में जो सर कह रहे थे कि अगर नींद पूरी हो तो सर नसीम कहते हैं नींद नहीं आती। तो मैं तो पेपर उसके दिनों में 18-18 24-24 घंटे सोई रहती थी, तो मुझे तो इतनी नींद आती है, मुझे तो अभी भी बहुत नींद आती है। आप अपना ना तो ग्लोबल कम हो गया, आप ये और इशू होगा, सीबीसी चेक करवाइएगा प्लीज। मेरी जो सीबीसी है ना, वो पहले 9 थी, फिर 11 भी थी, तो फोन तो मेरे अंदर ठीक है। लेस देन हैं? 6। 9 थी, 11 थी तो ठीक कम था। है, लेकिन कम है जी, कम आप है, हमारा कम है। दोबारा बायोलॉजी को जरा सर्च करें और पढ़ें, फिर आपको समझ आएगी कि क्या एक्चुअल सीबीसी क्या है। अच्छा, टेड डॉक्टर एक भी बताइएगा क्या सीखा आज? ठीक है।
ठीक है, तो वो टेड टॉक में मैंने सबने सारी बातें बता दी हैं, एक दो रह गई मैं बता देती हूँ। तो जी पहली बात ये कि उन्होंने ये बोला कि भाई बिना डिस्ट्रैक्शन काम करती हैं, इवन के कुछ बुक्स होती हैं वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट को पढ़े हैं उस सब्जेक्ट को ही पढ़ना चाहिए। पानी की बोतल ला और दो। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा कि जिंदगी जो है वो चलती रहेगी, डैड टीवी देखते रहेंगे, मॉम किचन में काम करती रहेंगी, कमरे में शोर शराबा बहन भाई करते रहेंगे, ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आपने इसमें एडजस्ट करके जो है पढ़ना है, क्योंकि आपने फोकस करने और ध्यान देना है। बाकी मेरे ख्याल सारी बातें सबने हाईलाइट कर दी। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच मिस सिरप। जी मिस लाइला, आप अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा। मिस्टर वेरी अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा इन द मीन टाइम। जी मिस लाइला। जी मैम। किकी फैंस टेड टॉक, मैम वॉइस आ रही है मेरी ठीक? और क्लियर है जी। ओके मैम। Kiki Fan's TED Talk, Study Smarter, Not Harder, is a game changer. She emphasized quality over quantity in studying, suggesting methods like active recall, spaced repetition, and taking strategic breaks. Her tip helps students learn more in with uh, lesson time with better retention. Thank you, ma'am. ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। फारूक भाई आपको कुछ कहना है? जी मैं इसमें एक ही चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि जब हम स्टडी कंटिन्यूसली कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि बॉडी जो है ना वो एक तरह से मूड का शिकार हो, तो उसमें बेहतर होता है कि कुछ एक्सरसाइज कर ली जाए, कुछ वॉक कर ली जाए, या जो स्ट्रेचिंग होती है नॉर्मल वो कर ली जाए, तो उससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है और आपका जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है उसमें इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो चीज़ ज़रूरी है कि जब आप आधा घंटा गुजर जाए, 1 घंटा गुजर जाए, तो यू बस वॉक समवेयर और आई मीन कुछ थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लें, तो बहुत ज़्यादा ना हो तो भी उससे आपको फोकस लाने में दोबारा आसानी हो। सही है, जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच फारूक भाई। इशार मेरे और हमारे अहमद भाई जरा ध्यान से सुन लें, आपके काम आने वाली चीजें। जी मिस्टर वेरिया, क्या दिखा आज की टेड टॉक से आपने, प्लीज बताइएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी कैमरा नहीं कर सकी, लाइट का इशू है। अच्छा, मैंने जो ये टेक टॉक पूरी कंप्लीट नहीं सुन पाई क्योंकि इंटरनेट बहुत स्टक हो रहा था, तो जो रिव्यूज से हालांकि मैंने देखी पूरी थी पर बहुत स्टक हो रही थी, तो कुछ पॉइंट्स मिस हुए हैं, बट सबके review के और जो थ्रू आउट मैंने आइडिया लिया तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा मैं रिलेट कर रही थी इससे, क्योंकि बड़ा डाइवर्स इन्होंने जो है वो पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट किए थे। अच्छा, मेरा थोड़ा-सा यहाँ पर मिस गुलशान को मैं कहूँगी कि आई एम द रियल लाइफ एग्जांपल, जो उन्होंने कहा था एप्लीकेबल, इट्स नॉट जनरली इट्स नॉट पॉसिबल कि जो उन्होंने चीज़ें बताई, बट इन माय केस इट एक्चुअली हैपेंड। और क्योंकि मेरा जो थ्रू आउट जर्नी रही पढ़ाई की और सबकी, तो वो बड़ा एक जैसे कि ना डिस्ट्रैक्शन भी थी, हर चीज़ थी, तो उसमें मेरे जो मेरी जर्नी रही ना उसमें बड़ा मज़े का एक सीन, क्योंकि वो जिस जिस तरह पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे थे सब मैं रिलेट कर रही थी, मैं याद कर रही थी लिटरली कि सीरियस और नॉन सीरियस एटीट्यूड के हवाले से। तो जब आपका just when you sit just before the night before the exams की जो नाइट होती है उसमें when you sit right there, तो जब उस वक्त तो आपको सीरियस होना ही होना पड़ता है ना, नो मैटर व्हाट। और उसके अलावा जहाँ तक नींद आने की बात है या जो म्यूजिक के हवाले से, हाँ वो मैं ज़रूर बताऊंगी कि ये एक्चुअली मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है कि जब बहुत बोर हो जाती थी या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, तो लिटरली मैं म्यूजिक लगा के अपने नोट्स बना रही होती थी, लिख रही होती थी, और ये इट एक्चुअली हेल्प। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, मतलब पॉइंट्स ऐसे हुए कि मैं अपनी वो जर्नी रिकॉल कर रही थी और मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी सबके पॉइंट्स को याद करते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है एट दिस पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि जो टेक टॉक थी, जिन्होंने जो स्पीकर थी, शी वॉज वेरी यंग, तो उसने तो अपनी जर्नी बताई, अपने 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 मेथड्स बताए जो भी, लेकिन मुझे लगता है हमारे इस पॉइंट पे हमें नाउ वी डोंट नीड टू फाइंड द वेज, बिकॉज वी एक्चुअली हैव फिगर्ड आउट कि हमें क्या सूट करता है, किस तरीके से, क्या स्पेस, जो भी हमारी जो भी एक आप कह लेना कि हमारे डायमेंशंस है, हमें पता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आके हमें ये फिगर आउट करना है कि हमें क्या चीज़ सूट करती है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं, लेकिन जो भी तरीका फाइंड आउट किया है उसको एंजॉय करना मैटर करता है ना।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें पॉइंट सबने अपने बताए हैं, रिव्यूज शेयर किए हैं, तो काफ़ी हद तक तो वैलिड भी हैं, काफ़ी हद तक मतलब मैं एग्री करती हूँ। लेकिन मिस गुलशान ने जो कहा ना कि ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन तो मैं उनको बताऊंगी कि ये मेरे केस में तो एप्लीकेबल भी रहा और एक्सपीरियंस भी किया मैंने। तो थोड़ी सी नैप भी ले ली, थोड़ा सा बहुत बहुत मतलब मतलब इंटरेस्टिंग ये टेड टॉक रही है और बहुत रिलेट किया मैंने बहुत उसको अपनी पर्सनल। बहुत शुक्रिया मशवरिया, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन वो कह रही थी कि इसको जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए, मतलब जैसे उनकी बेटी के लिए म्यूजिक वाला फैक्टर फिट नहीं होता, तो उनकी बेटी के लिए वो आइसोलेशन वाला वे फिट नहीं होता, उनको सामने बिठा के पढ़ाना है, सामने ही गाइड करना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एग्जैक्टली ठीक एग्जैक्टली है, इस पॉइंट पे हम है ना, वहां पर हमें, क्योंकि बच्चे की जब बात की है उन्होंने, तो वहां तो उसको डिस्कवर करना ही करना है ना कि वो कौन सा उसको मेथड सूट कर रहा है। लेकिन हमारे अगर हमारी बात की जाए तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी क्या लिमिटेशंस है ये। थैंक यू सो वेरी मच मशवरिया जी। मिस गुलशान, आपका हैंड रेज है। पहले तो मुझे मिस ये बताइएगा कि ये जो टेड टॉक थी, ये क्या डब्ड थी, किसी और लैंग्वेज में है क्या, या ये नहीं, इंग्लिश में ही है? इंग्लिश में ही है। फिर वो मेरे इंटरनेट का इशू हो रहा होगा उस वक्त। दूसरा ये मिस जवेरिया थी ना, मुझे ना जी मेरे मोबाइल मिस जवेरिया, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो जो कंफर्म जन्नती है ना, जिनको पास करना है, वो जो कंफर्म जन्नती है, वो उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि उनके ऊपर इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। एक मेच्योर बंदा जो है, उसको तो अपनी वैलिडिटी का पता होता है, उसको पता होता है कि उसने क्या करना है और किस हद तक करना है, किस तरह से उसने अपना गोल अचीव करना है। लेकिन जिसको मतलब ये जो हमारे बच्चे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, मैं उनके हवाले से कह रही हूँ कि वो जो है उनके लिए तो वो चीज उस तरह से मैटर ही नहीं कर रही होती, उनको पता ही नहीं होता। उनको आप बिठा देंगे ना सारे, फिर वो हो सकता है वहां बैठ के, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं या इस तरह से है कुछ, मतलब ऑब्जर्वेशन होती है, हर बंदे की डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। एक बंदा होता है वो कीन गोल होता है, एक बंदा जो होता है वो लापरवाह सा होता है। तो वो जो है ना, वो जो लापरवाह हैं, या जिन्होंने जिनके आधा आधा मुकद्दर फेल शुदगान में आ रहा होता है, मैं उनकी बात कर रही थी कि वो जो है वो वहां पर भी डिस्ट्रैक्ट कर जाएंगे। आप सारी चीजें हटा देंगे ना, तो वो जिस चटाई पे बैठे होंगे ना, उसके ऊपर लाइनें लगानी शुरू कर देंगे, उंगली के साथ जमा का निशान बनाना शुरू कर देंगे या ऐसे ही ए वैसे बनाना शुरू कर देंगे। तो मैं उस हिसाब से कह रही हूँ कि उन जिनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है ना, उनको देखना ही पड़ जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, कहीं सो तो नहीं गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो उनको माँ बाप पढ़ने के लिए बिठा देते कि बेटा अकेले बैठ के पढ़ो, और 1 घंटे बाद फिर यहाँ अम्मी या अब्बू कह रहे होते हैं कि ओ जाओ जाके देखो कि सौ तो नहीं गया। तो मैं सही, उस हिसाब से बात कर रही थी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं बता दूं कि मैं ये जितनी मैं पुरानी एग्जाम्पल दी है वो सारी मेरे पे फिट रहती है, एंड आई एम दैट काइंड ऑफ अ चाइल्ड। तो मेरे घर वाले कभी मुझे अकेला नहीं बैठ के पढ़ने देते थे कि इसने या तो कोई ना कोई दूसरा ही काम कर रहे हो ना, और यहाँ तो इसने मोहतरमा ने लाइक मेरे पास सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती थी, टेबल बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करके मैं बैठती थी, और एंड पे जाके पूरे 2 घंटे के बाद मैं कहती थी अब तो 2 घंटे में ये सेट हो गया, मैं थक गया, मैं जरा सो के आती हूँ, फिर आगे पढ़ती हूँ। सो यस, लॉट्स ऑफ द वेरिएशंस आर देयर। तो आप जिस तरह से भी कोई चीज करना चाहेंगे ना, तो आप ये समझिए कि पढ़ाई है हो रही है, सॉरी किताबें हैं, जगह है, सब कुछ है, बस एक मूड नहीं है पढ़ने का, वो वाला हाल होता था। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास आउट कर लिया, मैंने एमफिल भी कंप्लीट कर लिया, तो फिर ये चीजें हो ही जाती हैं मोर और लेस। फिर ये होता था कि एग्जाम डे नाइट जो होती है वो स्लीपेड नाइट्स होती थी मेरी, और फिर मुझे तब बैठ के पूरे साल की मेहनत एक रात में करनी पड़ती। Okay, Parishman, thank you so very much for your wonderful experiences you shared with us. Let's move toward that coding task. अब हम अपना कोडिंग का टास्क कर लेते हैं। आज की कोडिंग टास्क में आपने बनानी है वेदर ऐप, और वेदर ऐप थोड़ी सी ट्रिकी होती है, उसके बारे में मैं बताती चलूं। वेदर ऐप हम नॉर्मली अगर इसी प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे, आप बनाएंगे तो वो वर्केबल कभी होती है, कभी नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि जब तक उसके अंदर एक एपीआई की होती है, ठीक है, जब तक आप वो एपीआई की ऐड ऑन नहीं करेंगे, वो आपको पूरे पाकिस्तान का या थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको वेदर नहीं बताता। ठीक है, तो वो एपीआई की किस तरह से जनरेट करते हैं, कहाँ से मिलेगी,
हमारे पास कोडर साहब मौजूद है, अब्दुर्रहमान शेख। जी अब्दुर्रहमान शेख अपनी स्क्रीन शेयर करके बता रहे एपीआई की कैसे जनरेट करेंगे और किस। अच्छा एक और चीज बता दूं, आप एक एपीआई की ढूंढेंगे, इसको सेव कर लीजिएगा अपने लिए। इसको 10 बार भी यूज कर सकते हैं और 10 लोग भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, लेकिन ये एपीआई की एक बार आप ढूंढ के इसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा भी अगर आगे कहीं हमें दोबारा से इसे आपको क्रिएट करना पड़ता है डिफरेंट मैनर, तो आप दोबारा इसको यूज कर सके, या आपको किसी दूसरे फैलो को शेयर करनी पड़ती है तो आप अपनी एपीआई की को शेयर कर सके। जी अब्दुल। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर है। जी आपकी स्क्रीन शेयर है, कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, तो मैं इसकी वजह से आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ये वेबसाइट है जो कि जिधर से आपको एपीआई मिलेगी। मैं एक सेकंड पहले ये शेयर कर दूँ ताकि आप साथ साथ काम करते रहें। ये आपको मैंने जूम चैट में शेयर भी कर दी है। इस लिंक पे क्लिक करके ओपन कर लें। तो वेदर से रिलेटेड आपने अगर कभी भी कोई भी ऐप बनानी है तो इधर से आप एपीआई ले सकते हैं। ठीक है, इसको एपीआई को लेने का तरीका ये है कि यहाँ से साइन अप करते हैं आप। राइट साइड पे सेकंड ऑप्शन है, आप सेकंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास साइन इन का। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सिंपल साइन इन कर लें। मैं कर देता हूँ इनवैलिड। ठीक है, इधर मेरा ख्याल है इसको अगर ईमेल अपनी ऐड करनी है, ईमेल ऐड कर दी। यहाँ आप अपनी मर्जी से पासवर्ड रख सकते हैं जो भी रखना चाहें। ठीक है, ओके। मेरा साइन अप हम पहले इसको करना पड़ेगा। मैं साइन अप कर लेता हूँ पहले इसको। ये देखें, अपना नाम लिख दें टॉप पे। बाकी ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगते हैं, ये दे दें। यहाँ पासवर्ड रख लें। ये पासवर्ड आप जो चाहे आप रख सकते हैं इसको। ठीक है, और बाकी कुछ इसमें ये बॉक्सेस होते हैं, इसको चेक कर लीजिएगा। चेक लगा दें इस सब पे ना। ये चेक लगा दिए। यहाँ से आई एम नॉट अ रोबोट, यहाँ से क्रिएट अकाउंट ऑलरेडी टेकन ईमेल। ठीक है, ये मेरी ऑलरेडी हो चुकी है ईमेल। तो हम एक दूसरी ईमेल दे देते हैं इसको। लेट सपोज मैं इसको ये वाली ईमेल दे देता हूँ। यहाँ से बाकी क्रिएट अकाउंट। अभी ये प्रोसेसिंग हो रही है, इसमें देखते हैं। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क स्लो है तो इस वजह से टाइम लग रहा है। ये भी ईमेल हुई हुई है, एक्सेस्ट है। फिर मुझे दूसरी कोई ईमेल लेनी पड़ेगी। एक सेकेंड रुके, मैं दूसरी ईमेल ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं इधर दूसरी ईमेल डाल देता हूँ। gmail.com। इधर पासवर्ड
ठीक हो गया। आई थिंक आप सबका हो भी गया होगा साइन अप, क्योंकि मुझे इधर टाइम इसलिए लग रहा है मेरी तमाम ईमेल्स जो है इस्तेमाल हुई है तकरीबन। चले, ये वाली नहीं थी, ये एक्सिस्ट। तो अच्छा, जब आप साइन इन करेंगे तो इस तरीके का आपके पास जो है इंटरफेस आता है। इसको सबसे पहले ये कंपनी का कुछ पूछेगा, इसको कैंसिल कर दें। ठीक है, कैंसिल करने के बाद ये आपके पास इस तरीके का इंटरफेस है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है एपीआई की। इस एपीआई की पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब आपने एपीआई की किधर से क्रिएट करानी है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से, यहाँ आप लिखेंगे वेदर, ये खाली जगह पे, और जनरेट करवा देंगे, वो आपको वेदर एपीआई की जनरेट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ वेदर। अब देखें, ये मैंने सिंपल जनरेट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास जनरेट हो गई, ये वाली। ठीक है, नीचे। अच्छा, एक जो है नेम, डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक एपीआई की होती है, वो ऐसे ही डेमो के लिए होती है, तो उसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। उसके बाद आप एक और अपनी खुद से क्रिएट करके एपीआई की, तो वो इस्तेमाल करेंगे। एपीआई की ये वाली आपकी है। ठीक है, यहाँ तक कर लें, फिर आगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक हो गया सबका? जी जी हो गए। हो गया, ठीक है। इसके बाद आपकी जो एपीआई की है ना, उसके साथ आपका जो आपने नाम लिखा है वेदर, वो शो होगा। और साथ ये कुछ इस तरीके की नंबरिंग आ रही होगी, अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। तो ये आपकी एपीआई की है बेसिकली। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट करना है इस तरीके से, वो कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद कोड पेन पे आके अपने प्रॉम्प्ट के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, क्लाउड, सॉरी, क्लाउड पे आके यहाँ में आया, मैं इधर सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। आपने वही प्रॉम्प्ट देना है जो आपका हो। मैं वेदर वेदर ऐप आई गिव यू द एपीआई। अच्छा, ये साथ लिख दीजिएगा, आई गिव यू द एपीआई, या दिस इज द एपीआई। ठीक है, और ये लिखने के बाद आप साथ उसके एपीआई ऐड कर दीजिएगा, एपीआई। ठीक है, ये लिखा मैंने, शिफ्ट के साथ एंटर किया, नीचे आया, और कंट्रोल वी, जो एपीआई हमारी आई थी। ठीक है, अब इसको इस दर मैंने कहना है एपीआई प्लीज ऐड दिस एपीआई इन माय ऐप so it can work properly ली। ठीक है, अब मैं इसको प्रॉम्प्ट को इसको दे देता हूँ। बाकी वही चीज़ है, इसमें हो सकता है बहुत सारों की एरर है, मे बी पॉसिबल मेरी भी है एरर। तो कोई बात नहीं, अगर एरर आ रही है तो कोई मसला नहीं है। और इसमें चांसेस होते हैं कि मे बी पॉसिबल आपकी 24 आवर्स ले ले ये वेदर ऐप काम करने में, या मे बी पॉसिबल आपके एट अ टाइम काम कर जाए, लेकिन देख लेते हैं अभी। नहीं, मेरा आई थिंक काम नहीं करेगी। हाँ, नहीं कर रही। ठीक है, तो जो एरर है वो मेरे पास आ रहा है, वो मैं इसको दे देता हूँ एरर। मैं इधर से आके ये खाली जो मेरा एरर आ रहा है, मैं इतना इतना हिस्सा कॉपी करके इसको दे देता हूँ।
इधर मैं लिख देता हूँ। लेट्स सी। मैंने इसको एरर भी दे दी, सब बता दिया। अब देखते हैं ये क्या सही करता है इसमें। ये रहा, इस्लामाबाद इसने दे दिया, लाहौर दे दिया। देखिए मेरा तो इसने एट अ टाइम बना दिया। सही है। मे भी पॉसिबल आप लोगों का ये इस तरीके से ना हो। रावलपिंडी, सॉरी, गुजरावाला 20। ये एक सेकंड, ये हर जगह का 25 बता रहा है। यूजिंग डेमो डेटा एपीआई की इशू। ठीक है, मेरे में भी थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो वो मैं इसको दे देता हूँ वापस से। मैं इधर लिख देता हूँ, इसको सॉल्व कर दो। ये हर किसी सिटी का एक ही बता रहा है। देखते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे पूछना है, जो आपने तस्वीर कॉपी की है कैसे कॉपी की है, जो आपको पहले एरर आया था? ये आपके लैपटॉप के अंदर ही एक टूल होता है स्नैपिंग टूल के नाम से, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेट ये आपका विंडो का ऑप्शन होता है, इधर आए आप। इधर से भी आपको मिल जाता है, या अगर आपकी ये सर्च बार जो होती है, इधर से भी आप लिखेंगे स्नैपिंग टूल, आपको मिल जाएगा। ये रहा। ठीक है, ये है, इसको आप ओपन कर लें। ये ठीक है, इधर से न्यू, और जब न्यू करेंगे तो ये इस तरीके से जितना हिस्सा चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं इसी से सिलेक्ट कर रही थी, लेकिन वो जैसे कोड के ऊपर आता तो वो कट जाता है, अधूरा सा रह जाता है और वो सेव ही नहीं होता। मैं भी इसी से सिलेक्ट कर रही थी। नहीं तो सेव आप करेंगे तो होगा ना, अदरवाइज कॉपी मैंने अभी सेव नहीं किया, मैं खाली कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही ना, जब उसको सिलेक्शन के लिए कर्सर लेकर आती हूँ ना उसके ऊपर, तो जब ये जो सिटी और कराची के नेम पर आ रहा होता है ना, तो ये सब कुछ गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? नहीं, वो आई थिंक आप उससे पहले इस तरीके से क्लिक करती होंगी तो वो गायब हो रहा होगा। आप सिंपल ये न्यू पे क्लिक करें, ये जो न्यू लिखा है ना। ऐसे कर रही हूँ मैं, न्यू पे ही क्लिक करके फिर जो सिलेक्शन शुरू होती है वही कर रही हूँ। फिर पता नहीं आपका कोई इशू है, मुझे तो नहीं पता इस बारे में। अच्छा, ये कॉपी मैंने किया, मेरे पास फिर एरर आ रही है। ये थोड़ा टाइम लेता है, एरर काफ़ी सारी आती हैं इसके अंदर बनाते हो इसको। काइंडली सॉल्व इट। माय ऐप फुली वर्केबल।
देखते हैं अब इसने क्या किया है। कराची, ठीक है, अब इसने बना दी है। जब हर किसी का अलग अलग हमें दे रहा है। लेट्स सपोज मैं फिर इस्लामाबाद करता हूँ, अब ये गलत दे रहा है। नहीं, सही है। रावलपिंडी 22 बता रहा है, कराची 20 बता रहा है, ठीक है। अब ये सही दे रहा है ऑलमोस्ट। तो जिस तरीके से अभी मैंने एरर सॉल्व किए हैं वैसे ही आप लोगों को भी करने पड़ेंगे, और मे बी पॉसिबल आपका अभी बन जाए, या हो सकता है आपको 24 आवर्स लगे इसको टोटली वर्क करने में, क्योंकि ये एपीआई की है, और एपीआई की को एडजस्ट होने में, वर्क करने में मे बी पॉसिबल 24 आवर्स भी लग जाते हैं कभी कभी, तो कोई भरोसा नहीं। आप 24 आवर्स तक देखें, अगर नहीं बनता तो फिर उसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू अब्दुलरहमान जी। मिस लैला, आपको कोई सवाल है? जी मैम। अब्दुल रहमान बेटे, एक्चुअल में ये चीज़ तो मैंने मतलब जहाँ तक अंडरस्टैंड किया है, ये कोडिंग का जो काम है ना, ऑब्वियसली इसको बहुत ज़्यादा मतलब बेइंतहा ध्यान से सीखना होता है, और इसमें ऐसे समझ लें अगर 20-30% इसको सीखने में लगाएं तो इसको 80-70% हमने इसके एरर ठीक करने होते हैं, उस पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं अपने जहन में रखते हुए, जैसे आपने मुझे पहले पहले ये चीज़ हमें मतलब एक इंट्रोड्यूस करवाई है मैम ने अभी, तो कि हम अगर वेदर की ऐप को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ये माइंड में बिठा के हम मतलब पहले ही हम लॉग इन करेंगे एपीआई ऐप को, कि इसमें एरर आ सकते हैं अगर हम किसी और मेथड को यूज करते हैं। तो उसकी एक तो वजह क्या है आपके हिसाब से? ऑब्वियसली बेटे, मैं ये चीज क्वेश्चन करते हुए ये एक्सपेक्ट करूंगी कि अभी आप बहुत हाई लेवल के स्टूडेंट नहीं हैं, ऑब्वियसली आप भी लर्निंग प्रोसेस में हैं, बट एग्जैक्टली। जितना एड्रेस कर सकते हैं उतना जरूर मुझे बताने की कोशिश करें। और ऑब्वियसली मैम भी माशाल्लाह जाहिर है वो फिर और बेहतर तरीके से हमें आपकी और मेरी बात को ज्यादा बेहतर हमें समझा पाएंगी। जी, तो बेसिकली ये हम एपीआई की का मतलब जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग हम तब, ये एपीआई बेसिक तब इस्तेमाल होती है जब कोई इस तरीके के लाइक लोकेशंस हो गई, ये गूगल मैप्स अगर हम बना रहे हैं, या वेदर ऐप जो कि डिफरेंट जगहों की हमें इंफॉर्मेशन दे, लाइक वेदर बताए या डिफरेंट जगह की लोकेशंस बताए, ठीक है, जी गूगल जी मैप वगैरह। तो इसके लिए हमें एपीआई चाहिए, अदरवाइज वो बना तो देगा आपकी, लाइक अगर आप एपीआई की नहीं लेते तो वो आपका टास्क तो हो जाएगा, लेकिन लोकेशन नहीं आ पाएगी। जिस तरीके से हम गूगल मैप सर्च करते हैं, किस कहीं की भी लोकेशन सर्च करें वो आ जाती है, वेदर हम कहीं का भी गूगल पे सर्च करते आ जाता है। तो उसके अंदर भी ये कीज इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। जी तो वो इसीलिए इस्तेमाल होती हैं कि देखिए, सैटेलाइट है ना, जी बेटे। सैटेलाइट के जरिए से हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर बात करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके अंदर एपीआई की इस्तेमाल होती है, और इसके बगैर आपका कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाती। ये रोबोट्स हो गए, ये सब चीज़ों में होती अच्छा, एपीआई। मतलब अब अगर मैं डे फर्स्ट को देखूं तो हमसे ना एक कैलकुलेटर डिजाइन करवाया गया। ऑब्वियसली वो सिंपल है, क्योंकि हमने बिल्कुल पहला फीचर्स जो है बच्चों वाला ही बनाया है, प्लस और माइनस और सिंपल, क्योंकि ऑब्वियसली साइंटिफिक भी होते हैं फिर फर्दर क्लासेस के लिए। अब सिंपल जो बनाया है वो तो हमने बड़े आराम से उसी से एल्गोरिदम भी उसकी हो गई, और वो हमारा टास्क विदाउट किसी एरर के सेकंड्स में हमारे सामने आ गया है। लेकिन आप कह रहे हैं जैसे रोबोटिक हम कुछ ऐसा करते हैं, मतलब थोड़ा हाई लेवल की, या आप कह रहे हैं कि मैप्स का हम अगर कोई ऐप तैयार करते हैं, या जैसे आप वेदर में, मतलब आप इन चीज को, मैम आप भी अगर हम दोनों गलत किसी पॉइंट पे हो तो क्लियर कीजिएगा काइंडली। अगर मतलब आप जैसे कह रहे हैं ना हमने एपीआई वाली ऐप को यूज करना है, तो वो हम माइंड में रख के बैठेंगे कि हम अगर किसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज या डिटेलिंग में जा रहे हैं तो हम एपीआई पे आएंगे, या क्या हमारे माइंड में होना चाहिए हम क्यों इस पे शिफ्ट हो के इस पे हम अपनी एल्गोरिदम रेडी करवा रहे हैं, वो क्या हम कैल अपने माइंड में रख के जी जी बेटे आएंगे? जी, तो बेसिकली कैलकुलेटर में एपीआई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जी 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 आप कैसा भी बनाएं उसमें एपीआई की ज़रूरत नहीं है। एपीआई मैंने बताया कि कब कब इस्तेमाल होनी है एपीआई की, जिस तरीके से आप कोई मतलब रोबोट बनाना चाह रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिस जी तरीके जी से चैट जीपीटी है उसका आप डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हैं,
ठीक है। क्लोन तो क्लोन हाँ, बोल क्लोन, सकते हैं उसको। जी जी ठीक है, क्लोन ही बोलते हैं। ठीक है। तो वो बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एपीआई की लाजमी है। अगर एपीआई की नहीं लगाते तो आपका वर्केबल नहीं है। मैंने खुद भी क्योंकि बनाए हुए हैं, तो मुझे इसलिए आइडिया है कि जी ज़रूरी जी, होता है ठीक मिस एपीआई की, लेना अगर नहीं। ऐप थैंक यू सो बनाने मच। से आपको जी जी वर्केबल और मैम, लाइव होती है तो एपीआई की लगाई जाती है। जैसे कि अभी ठीक है अब्दुलरहमान मैम। ने बताया कि एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ना, तो वो बेसिकली आपको लाइव लोकेशंस के साथ साथ उस लोकेशन की पूरी जो वेदर इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। तो इसलिए एपीआई की जो है वो जरूर इसमें ऐड करनी जरूरी होती है वेदर ठीक है ऐप मैम। में, क्योंकि वो डे टू डे क्या हर एक मिनट के बाद आपका वेदर चेंज हो रहा है। तो एपीआई की वेदर ऐप के लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है उसको यूज करना। रेस्ट ये है कि जो आपने सवाल पूछा कि आप जितनी भी ऐप बनाते हैं तो इसमें डिफरेंट अगर आप मेथड से बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं उससे बनाते। हम क्लॉड से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक और बिल्कुल बच्चों की तरह से सीखने वाला होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि हमें बहुत सारी फियर रहते हैं कि मुझे कोडिंग सीखनी है लेकिन मुझे सीएसएस नहीं सीखनी, एचटीएमएल नहीं पढ़ी जाती। तो इतने बड़े लेवल पे आके आप ये सारी जब आप ये लैंग्वेजेस सीखने की बात करते हैं तब हम कुछ समहाउ बहुत सबकी बहुत सारी मेमोरीज अच्छी होती है। जो मेरे जैसे नालायक स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो इतनी सारी लैंग्वेजेस को अब एक सर्टेन एज के बाद उसको कैसे ग्रास्प करें और किस तरह से उसको याद करें। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि अगर वो कोडिंग में बहुत इंटरेस्टेड हैं और उनको कोडिंग की बेसिक लैंग्वेजेस नहीं आती तो ना सीखें। उनके लिए एआई ने सीख लिया, वो सिर्फ ये सीख लें कि एआई को प्रॉम्प्ट्स क्या क्या देंगे और किस तरह से उसे अपने एरर फिक्स कराएंगे। जैसे अभी अब्दुलरहमान के 4 एरर आए तो उन्होंने चारों बार उनके स्क्रीनशॉट लेके उसी को बताया कि ये एरर आ रहे हैं और इन एरर को फिक्स कर दो। तो उसने ग्रेजुअली एंड स्लोली थोड़ा थोड़ा करके हर एरर को फिक्स करता गया और एंड पे 5वें प्रॉम्प्ट पे वो बिल्कुल ठीक बन गया। तो इट्स जी द सेम कि जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत सारी मिस्टेक्स करेगी क्योंकि अल्टीमेटली डिजाइन तो हमने किया है ना। तो हम जी शायद मैम। उसको प्रॉम्प्ट नहीं सही दे पा रहे या वो हमारे प्रॉम्प्ट को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। इन दो ही गलतियों की वजह से वो ये काम नहीं हो रहा। थर्डली आप जो एपीआई की यूज करें समटाइम उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है, वो भी वर्केबल नहीं होती तो वो आपको बता देता है कि आपकी एपीआई की अप्रोप्रिएट नहीं है, इसको चेंज कर। तो फिर आप अपनी एपीआई की को चेंज करके देखते हैं तो भी आपका एरर सॉल्व होता है। ग्रेजुअली एंड स्लोली जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपके लिए डिफरेंट चीजें होंगी जो कि कोडिंग में आप करेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक से प्लॉट से इसलिए शुरू किया गया कि ये बहुत आसान है। जी मैम, थैंक यू सो मच। वैसे मैम आप इतने बड़े होते पे बैठी हैं, आप अपने लिए इस तरह के बड़ापन है कि वर्ड यूज करती हैं। अच्छा मैम, वैसे मैं ये शायद मेरा पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया। मैं ये असल में अब्दुल रहमान से पूछ रही थी। ऑब्वियसली वो जैसे अभी एक मैम ने भी कहा था हम क्रॉलिंग के फेज में हैं, तो वो तो ऑब्वियसली आप लोग एक डिजाइन बाय डिजाइन आप लोगों ने हमें सिखाना है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है। एकदम अब जंप लगवाएंगे तो हम भी मुंह के बल गिरेंगे। यही मैं असल में अब्दुल रहमान से पॉइंट पूछ रही थी कि जैसे उन्होंने फिर आपने भी क्लियर किया और अब्दुल रहमान ने भी कि जैसा रिबोटिक चीज है कोई या वेदर है जिसकी आप कह रहे हैं टाइम टू टाइम उसकी डिटेल चेंज होती है, तो उस चीज को करने के लिए हम एल्गोरिदम एपीआई पे आके बनवाएंगे। बस मुझे क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। जी जी फारूक भाई अपनी स्क्रीन शेयर करके आप अपनी ऐप दिखा दें वेदर एपीआई इन वैलिड ईमेल। तो आप जावेद भाई जी अपनी जी ईमेल चेंज करके दें। जी फारूक भाई मैम स्क्रीन नया शेयर कर ईमेल लीजिए। बनाना होगा। हाँ मैंने अभी कल ही सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट 3 ईमेल बना के रखें ताकि अगर एक पे नहीं आपका कोई चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल वर्क कर रहा तो दूसरे को स्विच कर लें, दूसरे पे नहीं करता फिर पहले पे वापस आ जाए। ठीक है, जब फ्री में कोई काम कर रहा होता है तो उसके जुगाड़ लगा के रखते हैं। ठीक। चल ठीक। फारूक भाई आपकी सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग का हमें जी शो हो रहा है अभी आपको विजिबल है। स्क्रीन। आप विजिबल होंगी जबरदस्ती। क्या बात है, क्या कलर है आपकी इस ऐप का, नाइस फंक्शंस। ठीक है, अब कराची की जगह पे अगर किसी और को सेलेक्ट करें तो होता है। फारूक भाई कराची को हाँ लाहौर से चेंज करके जबरदस्त, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अब जैसे आपकी वन गो में ही बन गई, बहुत अच्छा हो गया। तो ये सबके लिए डिफरेंट होगा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। विजिबिलिटी, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, हाई एंड लो लेवल, विंड स्पीड, सनराइज सनसेट, जबरदस्त। जी मैं सुनना आपके क्या सवाल है, बहुत अच्छी है आप फारूक भाई। मिस मरियम, मेरा सवाल जो है ना वो प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे आपने हमें जब कोडिंग के बारे में बताया था तो सबसे पहले आपने कहा था कि इसके अंदर आपने ये वाली लाइन जरूर ऐड करनी है कि
मेक इट इन वन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो वो अब्दुलरहमान ने ऐड नहीं की। मतलब वो क्यों ऐड नहीं की, हाँ, उसके बगैर कैसे बन गया? जो बेहतर ऐप है ना उसमें एपीआई की इज द बेसिक थिंग, और ये इसकी बहुत मेजर चीज है जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। और क्लॉड के अंदर आप जब इसको ऐड कर देंगे ना, समटाइम क्लॉड जो है वो विदाउट दिस सेंटेंस भी अंडरस्टैंड करता है, समटाइम ये कंपल्सरी होता है कि आप इसको ऐड कर दें। अगर आप इसको ऐड करके और उसके बाद एपीआई की के इन्फॉर्मेशन देंगे तो भी वैलिड है, वो आप उसको अंडरस्टैंड कर लेगा, और प्रॉबेबली वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। जितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट आप शेयर करेंगे ना, उतनी अच्छी और बेहतरीन एप्स डिजाइन होती है। बस ये बात याद, ठीक है। कोई भी काम है, आपको कुछ भी करवाना है, बस आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर और बहुत डिटेल्ड रखनी है। मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये मुझे सब कुछ ही दे दो उसके अंदर, या मुझे ये सारी कहानी उसको बता के कहना है कि अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ आगे, तो फिर वो बता देता है। आपने पूरी हिस्ट्री उसको बतानी है, हर बार बतानी है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। ठीक है, जी थैंक यू। गुलशान, आपका कोई सवाल है? यस गुलशान। मैम फाइनली डन, जबरदस्त इशाल दारा, जबरदस्त मिस इरम। जी मिस गुलशान, आपका क्या सवाल है? मिस मेरा तो सवाल ही सवाल है, मैं स्क्रीन शेयर करूं? मुझे जरा इसके ये स्टार्ट से ही थोड़ी सी जरूरत है हेल्प की। जी आजम भाई यू कैन। जी मिस गुलशान, जैसे 1 मिनट दीजिएगा क्योंकि क्लास का टाइम एंड हो गया। मैं पार्टिसिपेंट्स को कहूँ लीव कर सके, फिर हम आपका काम करा देते हैं, ठीक है। जी thank you थैंक so यू। very much participants for joining the class tonight. We'll see you tomorrow on Monday, sorry. So please complete all the tasks that I mentioned to you, and please make it clear. You guys have to be very particular about your descriptions. That's actually a very mandatory thing. Thank you so very much. Keep doing amazing things and take good care of yourself. Allah Hafiz. And Miss Sidra, inshallah, from Monday.